Hello everyone, welcome to our next live, and we have Imam with us. And today's topic, as you have noticed from the thumbnail and title, we will be discussing more about the BGT 2024 and 2025, and the squad. Only Team India has announced the squad. So, Tavish bhai, can I join? Yes, bro. I am adding the guest link on chat. You can use that link to join. I'll pin the comment also. Uh, Imam Bhai, meanwhile our audience joins, let's set some context around today's discussion and Okay. key points what you have in your mind, like which topic we should cover around in this live. Salman is commented most awaited live. everyone's everyone's most Firstly, awaited. firstly, Shadman, thank you. Thank you for encouraging us. And thank you for joining live, firstly. So, He's our in like my, regular audience, and you can say like he's one of our key members. You can say he's very means he is always active on chat. He will ask very good questions, I would say, and he has good knowledge about cricket as well. So let me add Tavish Bhai also. Hi Tavish Bhai. शुक्रिया hello, कैसे हैं bhai. आप? Welcome to live. अरे हेलो इमाम भाई ऑल द Yeah, वे dinner फ्रॉम ho gaya. बैंगलोर या So, firstly, सबसे the पहले topic is about आप BGT. Yeah. We just have to discuss about, the players and their weaknesses and strength too. So, firstly, we'll start with Indian squad. So, we'll better to I'll, show the 15-member yeah, squad. I'll show the squad. Just a second. So meanwhile, I think, like I asked, no, Imam Bhai, Yeah. you can set the context, like what are the key points we should discuss in this in this live session, and what our audience can uh, means contribute or they can ask around those lines. So context is about the series actually, because as you all know, India have been winning the series particularly from last 4 5 years, I think. So why Australia not able to win this trophy? Firstly, that one could be the context. And second one, when it comes to batters, we should have to discuss about the opening pair. Right. Is my screen available? Means visible the Yeah, yeah. squad. एब्सोल्युटली Yeah, so I think I'll ask one of the key question which I had in my mind was, Yeah. um, let's before going into the BGT, let's briefly analyze the team's performance in this current New Zealand series and how it can or it may impact BGT series. Yeah, why not? Surely. So yeah, you can give your point, Imam Bhai. Then I will ask Tavish Bhai also the same question. Okay. So firstly, we have to discuss about New Zealand series. Yeah, So yeah, New Zealand have been playing better cricket than Indian team. So we should have to appreciate that firstly, because you are visiting, Indian pitches and you are playing on that pitches. That is not an easy thing to do. So they have succeeded by playing two tests by winning 2-2. So we should have to appreciate them firstly. So in this series particularly, we have lot of weaknesses, particularly about batters. So in India have tried spin friendly and some flat tracks also, but the thing is our openers failed to score few runs particularly.
and Rohit Sharma have been big headache for Team India in this particular series because there are lot of expectations on Rohit Sharma, like how he have been playing in this year particularly. So there are due to that expectations, he could not able to reach that much. And when you look at his average in this series, New Zealand and previous Bangladesh, he scored only 150. I think 71 is his highest score. I think 250s. One 250. against. No, I think it's only one ना, मतलब बांग्लादेश के Yeah. खिलाफ एक आया था क्या? क्योंकि मेरे को याद होता है सिर्फ एक न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था, सेकेंड इनिंग में आया था। बाकी और No, कोई Uh, Rohit 50 Sharma तो has only 150. I think yeah, Rohit in Sharma has New Zealand. 150. Yeah, yeah, that against न्यूजीलैंड। yeah, against New Zealand. And when it comes to Bangladesh series, he's just feeling like. Um, I think, in my opinion, Rohit Sharma is not particular player we will look after for test series. These words may be hurting for some Rohit fans might be, but the thing is, he's not up to the mark. You are representing Team India in test. That does not mean the selfless 30s 40s not count as test innings, in my opinion. True. So you should have to hold your wicket firstly. That have been a free wicket for New Zealand in this series. Rohit Sharma's wicket. And Jaiswal have been playing really well, and just because of having that much pressure after falling wickets from that side, another side, so he could not able to make many runs as much as he can. And Rohit Sharma is a big concern for BGT and New Zealand series. And when it comes to at number three, we tried Virat Kohli, but it is maybe we can say some experiment. But the thing is, Virat Kohli, he should have to play at number four only in test particularly. Imam So bro, I'll take this question because since you were discussing about Rohit Sharma, so there is an yeah. interesting question from Sajman. He's asking what makes Rohit more uncomfortable this year, spin, pace, or both? See, we cannot say that ये स्पिन को नहीं खेल रहे नहीं तो ये पेस को नहीं अटैक कर रहे. Rohit Sharma's weakness have been fourth stump in swing, particularly in test format. जो कोई बॉलर फोर्थ स्टंप से इन स्विंग कर रहा था वो डिफेंस करने को देख रहा है. Okay, उसके वजह से ही ये बाउल्ड होने का कारण नहीं तो एलबीडब्ल्यू का ऐसा चल रहा है नहीं तो okay, एड्ज लेके कीपर कैच होना. सो फोर्थ विकेट का इन स्विंग यार्कर है ना, ये जो डिलीवरी रोहित शर्मा को बिग हेडेज हो गया. एंड व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलियन सीरीज, आई मीन पैट कमिंस करने वाला है वहाँ पे। पैट कमिंस करने वाला है वो। पैट कमिंस हो या गया है, जॉश भी गुड हो गया। ये अटैक करेंगे, ये जंगल की आग की तरह होती है, जो वीकनेसेस होती है ना खिलाड़ियों की, वो जंगल की आग की तरह होती है। और ऑस्ट्रेलिया में तो आग जल्दी लगती है, बल्कि खूब सारे फॉरेस्ट भी तो है ना वहाँ पे। right. लेकिन हैजलवुड और ये पैट कमिंस का और स्टार्क है ना, ये कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा को बहुत दिक्कत हो गया. क्या है ना, particularly against these three in longer format, just like in Test cricket, Rohit Sharma is not that successful. He just give his wicket to particularly Hazelwood to or else I mean Stark. All these bowlers are trying to dominate Rohit Sharma in Test format by bowling wicket to wicket stump or else short pitch delivery. वो भी 140 से कम स्पीड डालने से पुल करता है ना, सो उधर फील्ड को प्लेस करने के बाद उधर आउट होने का ये सब भी हम देख लिया. रोहित शर्मा वी कैन नॉट डिसाइड लाइक स्पिन एंड pace is like we cannot say that he have been out for equally for spin and equally for pace. Right. So let's move on. तविश भाई आपकी राय जानना चाहूंगा कि जो न्यूजीलैंड वाला सीरीज है उसमें टीम का करंट परफॉर्मेंस जो रहा है, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है. थर्ड मैच आपका थर्ड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक फर्स्ट से है. तो आपका क्या राय, मतलब ये बीजीटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट रहेगा इसका, और
कैसे देख रहे हो आप? टीम किस तरीके से खेलेगी बीजीटी में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हैप्पी धनतेरस आप लोगों को। और इमाम भाई, शुक्रिया कि पहला ओवर आपने खेला, नहीं तो हर बार ये लोग मेरे को टेल एंडर की तरह आगे कर देते यार। मतलब मैं ओपनिंग बैटर नहीं हूँ, मैं ओपनिंग बॉलर जरूर हूँ, पर मजाक से हटके न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के अंदर मतलब पॉजिटिव बहुत कम मिलेंगे, पर नेगेटिव बहुत ज्यादा। पर जो जो पॉजिटिव आपको देखने को मिले वो कौन कौन से मिले? एक तो देखिए वहां पे रोहित शर्मा का, भले ही फॉर्म में नहीं होना, पर वो जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, इंटेंट। और भाई इतना बोलते हो तो आउट होना ही भूल जाओ यार एक बार प्लीज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वही कोशिश करना कि आउट होना ही भूल जाए आप, हम सब के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा, यशस्वी जायसवाल जो फैंटास्टिक प्लेयर है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, लड़का शानदार बैटिंग कर रहा है। साथ में जो बहुत बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं वो खासकर आप देखा जाए तो आकाश की, I mean, हालांकि उनको इतना विकेट नहीं मिला है, पर जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है ना कि लड़का, चाहे आप बांग्लादेश सीरीज की बात कर लीजिए, वो बहुत इम्पैक्टफुल छोड़ने वाला है, इम्पैक्ट छोड़ने वाला है वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। साथ में आप देखिए तो सरफराज खान एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, यशस्वी जायसवाल एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पॉजिटिव सबसे बड़ा तो मेरे को लगता है ऋषभ पंत भी है। और सामने अगर नेथन लायन, बाल नहीं, तो फिर वैसे भी काम नहीं उसका तो। पर वो बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान का जो बैटिंग है वो पूरा फेल हुआ है, वो कोलैप्स हुआ है। पर जिन जिन खिलाड़ियों ने वो हाथ खड़े किए ना, उन्होंने गेंदबाजों की खटिया खड़ी करी है पूरी तरीके से, ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बिल्कुल। और एक चीज आई थिंक मैं एग्री करूंगा इमाम भाई से, उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा था कि टॉप ऑर्डर हमारा एक्सेप्ट जायसवाल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। और टेस्ट मैच में अगर आप देखोगे, अगर टेस्ट आपको जितने आप दो तरीके से जीत सकते हो, या तो आपके बॉलर्स ओपोनेंट को कम रन में निपटा दे, 20 विकेट निकाल ले फटाफट, या फिर आपका जो बैटिंग है, बैटिंग में टॉप ऑर्डर आपको बड़े रन बना के दे, और फिर आपके बॉलर्स ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके विकेट निकालेंगे, और टेस्ट मैच आप उसी तरीके से जीतते हो। तो ये दो पॉइंट तो मैं एग्री करता हूँ इमाम भाई के साथ। और बाकी और क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। स्पोर्ट्स डिबेट ब्रो का कमेंट आया है 4-2, एक कमेंट में उन्होंने 4-2 इंडिया बोला है, एक में उन्होंने 4-1 इंडिया रखा है, तो आई Yeah, थिंक it is 4-1 actually. ओके ओके। ओवर इंडिया, आई मीन आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, ये कंडीशन देख के लग नहीं रहा। और इंडिया को ना पुजारा की बहुत जरूरत है यार, लिटरली, क्योंकि पुजारा के बिना आप ये टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते। मैं तो बड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन दूंगा यार, मेरे को पता है No, कि no, we साढ़े प्रेडिक्शन है cannot भाई, say that. हमारा हमारा टाइटल आज बोल्ड प्रेडिक्शन ही है, तो आप जितना बोल्ड दे सकते हो प्रेडिक्शन दे सकते हो इस वीडियो में आज। क्योंकि देखो क्या है ना कि ये खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। क्योंकि एक पैट कमिंस को सबसे बड़ा खतरा पुजारा ही था, बहुत तपाता था बेचारा। पर अब वो भी नहीं है, तो आउट करने के लिए बहुत इजी बन गया है सबको। तो और वन वे क्रिकेट आप खेल के ना नहीं जीत सकते, टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको वो कभी कभी स्विच ऑफ भी होना पड़ता है, वो स्विच ऑन होना पड़ता है। आपने वो अकलमंदी से करना पड़ता है। और अगर एक मैच भी हम हारे ना बीजीटी के अंदर, तो ये समझ लो कि बॉस हम ना WTC फाइनल नहीं खेल रहे। वो तो बहुत बहुत लाइन पे रहेगा। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सलमान भाई का, ऑस्ट्रेलियंस विल एनालाइज एवरीवन्स वीकनेस सो दिस इज ए प्लस पॉइंट फॉर देम। ये आई थिंक इस समय इसका, ये तो मैं एग्री करता हूँ। इसका मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि हम लोग देखते हैं कि दूसरे जितने भी फॉरेन टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, सबके पास वीडियो एनालिस्ट रहते हैं, या वो लोग स्ट्रैटेजी बना के आते हैं ओपोनेंट के ऊपर। बट टीम इंडिया का जब आप देखते हो ना, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्ट पिन पॉइंट हुआ है किसी पर्टिकुलर टीम के ऊपर। नॉट प्लेयर, सिंगल प्लेयर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल प्लेयर के लिए बहुत टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसके लिए ये प्लान किया था और वो काम कर गया। एज ए होल टीम सारे प्लेयर्स के लिए आप क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि ओपोनेंट का आप 6 या 7 विकेट इजिली ले लेते हो, उसके बाद टेलेंडर आके आपको परेशान करते हैं, टेलेंडर आपके अगेंस्ट में 100 रन 150 रन का पार्टनरशिप बनाते हैं, और वही 100 रन 150 रन से आप हारते हो मैच। सेम चीज न्यूजीलैंड में भी, ये न्यूजीलैंड सीरीज में भी हुआ है। टीम सऊदी ने पहले टेस्ट में आई थिंक उन्होंने 60 कुछ और रन बनाए थे, आके जब विकेट उनका जल्दी चला गया था ऊपर से, वो मैच में वो हारे हुए से।
सेकंड मैच में हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ, बट खराब तो दोनों सिचुएशन में खेले हैं। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है, हमारे पास वीडियो एनालिस्ट या इतने डिटेल में ये से नहीं है, या यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली? No, it is not about video analyst or some kind of particular jobs. ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो सोचे तो आप, ऑस्ट्रेलिया didn't yet announce its squad, so that is very smartest thing which a team can do, राइट। because they'll analyze particularly opponent team, not their team. They just go with the opponent failures, then करेक्ट। only they can overcome their strength, right? So if suppose 15 member squad, whatever the squad selected for Team India, they just go through all every player weaknesses firstly. So what kind of bowls they have been getting out, and what kind of shots they were playing in slot balls and everything. So when it comes to Australian team, they are very brave. But particularly अगर ये एनालिस्ट का बात हो गई थी ना हमारे बारे में अभी, so Australia has biggest and strongest team selection committee and team selection management. No one might not agree with that, because Australia is the team which have been winning ICC trophies, and they were frustrated like Indian team coming to Australia and winning like home series. So they Yeah. were literally frustrated about this, and they don't have particular player who can, like, we have to look up that player, this player, because in past they have like in their mind Virat Kohli is the one we should have to afraid of, but Virat Kohli is not up to the mark, the standards which have been created. So we can surely say that Australia is smartest country and team which can go after anything. राइट, राइट। सो तविश भाई, आपकी राय जानना चाहूंगा इस पे। इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि सी दोनों के लिए ना स्किल सेट अलग लगता है। टॉप जो 7-8 के बैटर्स को आउट करने के लिए एक अलग स्किल सेट चाहिए होता है, पर जो टेल एंडर को हम ना बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं यार, क्योंकि टेल एंडर है यार, ठीक है मारेगा तो ठीक है देखा हाँ जाएगा, भाई। पर मार ही देते हैं यार वो टेल एंडर भी। और पता है क्या होता है ना कि कोई हम लोग ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं करते। मतलब एज अ फास्ट बॉलर अगर आपने ओवर द विकेट से नहीं रन पड़ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, आप राउंड द विकेट आके बाउंसर डालो ना यार, क्योंकि आप तो ब्लाइंड जोन से अगर आप बाउंसर डालोगे तो शायद वो काम कर जाए, कुछ एक अलग फील्ड प्लेसमेंट लगाए, कुछ एक ऐसा करे जो टीम के लिए फायदा हो। तो वो जो एक्स्ट्रा रन पड़ जाते हैं ना, वो इंडिया को बहुत भारी पड़ जाते हैं, और जिसके चलते मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो इंडिया को हर्ट करती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होना वो एक बहुत खराब मुझे लगता है कि शायद यही कारण है जिसकी वजह से वो टेल एंडर्स जो है ना वो परेशान करते हैं हमको। ओके। तो दीपक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाय दीपक भाई, कैसे हैं? हाँ भाई, दीपक सभी भाई, लोगों को नमस्ते और हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। और आज हमारी इंडियन वुमेन्स टीम जो है कि सीरीज जीत गई है, तो सभी लोग को शुभकामनाएं। और थोड़ा दुख तो है कि हमारी टीम वहां पे बढ़िया नहीं की थी। चलो। फाइनली बहुत दिनों के बाद न्यूजीलैंड को हराया मेंस और हम्म। वुमेन्स में। Oh, bhai, pan masala हाँ, series में, that is what hurting me. एग्री, वही एग्री। मैं बोला कि थोड़ा मतलब दुख तो हुआ कि वो जहाँ पे परफॉर्म करना था वहां पे हम लोग हार गए। कोई नहीं, अभी से आगे वनडे वर्ल्ड कप शायद आने वाला है ना, महिला का। मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं वुमेन्स वाला बहुत कम ही मैच देखता हूँ या फिर फॉलो करता हूँ, तो वुमेन्स में आज उतना आइडिया। आई थिंक स्मृति मंदाना ने सेंचुरी किया है, तो हाँ, वो अच्छा खेले हाईएस्ट। हैं, बट और शायद जो मैंने कहा था वो शायद उन्होंने स्मृति मानधना ने सुन लिया कि आपको एक विकेट होल्ड करके रखना है, एक हैंड। और आप बड़ी खिलाड़ी है, अगर स्टार्टिंग में डॉट बॉल्स हो भी गई तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी वो बहुत खिलाड़ी हो, बड़ी खिलाड़ी जानती कि किस तरीके से उनको और सिचुएशन को हैंडल आज करना है।
आज जिस तरीके से खेले हैं, जैसे आपने कहा कि बड़ी खिलाड़ी हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं, इवन हरमनप्रीत कौर, सॉरी, तो दोनों का पार्टनरशिप भी आई थिंक हुआ है, कुछ बड़ा पार्टनरशिप हुआ है और उन्होंने हाँ मैच जिताया दोनों है, का हुआ। तो ये दोनों प्लेयर से एक्सपेक्ट किया ही जाता है। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो थोड़ा फास्ट में कमेंट्स लेते हैं, वरना हमारे ओके। दर्शक थोड़े नाराज हो जाएंगे। तो सलमान भाई पूछ रहे हैं, आई डोंट थिंक अटैकिंग क्रिकेट फ्रॉम इंडिया विल वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एवरी टाइम, डू दे नीड टू चेंज देयर इंटेंट? इमाम भाई आप एब्सोल्युटली। बताइए। Yeah, firstly, I agree with that. Attacking cricket test format में I'm not a big fan of that. Seriously, हम्म, because test format is all about patience and holding wicket. You are coming from any kind of particular innings, whatever first innings or fourth innings, whatever it could be. You just हम्म, have to hold your wicket because test format has a lot of overs, like 90 overs per day, which means you have to take the shine of the ball. हम्म, So if you are not able to take that shine by giving your wicket in within 2 or 5 overs, so you are giving your free wicket to opponent. करेक्ट। So like whatever suppose Indian team going to attack, this kind of attacking mode, this हम्म, won't work because there are a lot of swing bowlers. You can say Hazelwood and Stark and Pat Cummins. Pat Cummins, we cannot say that swing, but he'll bowl length to length delivery, wicket to wicket length. So that could be tough one to handle. हम्म, So by attacking wicket to wicket length, either you go for a six or you can go for out. हम्म, There is no other option. Attacking cricket तो नहीं काम करेगा. You just have to go in defensive mode only. अटैकिंग ओके। मोड काम करेगा जबकि अगर फोर्थ इनिंग्स में चेजिंग में हम लोग 300 रन या 250 रन स्कोर करना पड़ेगा, जब ऋषभ पंत का जैसा कोई बैटर सरफराज खान कॉम्बिनेशन है ना, ये या दो लोग कर सकते हैं, देर इज ए चांस. आई वॉज अबाउट टू कम टू दैट पॉइंट बिकॉज आई फील या ये डिपेंड करता है कि आपका मैच सिचुएशन कैसा है, मोमेंटम किस या तरीके से बन रहा है। तो ऑलवेज यू कांट प्ले अटैकिंग क्रिकेट, यू नीड टू बी सेंसिबल। Like if you are playing in day one, batting first, and if you lose 3 or 4 wicket in quick succession, what's the need? It's a 5 day cricket, like Imam Bhai said. You don't need always attacking cricket. You need to be sensible. You need to pick the bowlers. Like last time I remember, Rishabh Pant picked Nathan Lyon, and it या was a really good approach, and it worked for Team India, right? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट विकेट टेकिंग बॉलर स्पिनर नेथन लायन को अटैक करते हो, उनका लाइन लेंथ खराब कर दे तो, और उनके अगेंस्ट आप रन बटोर रहे हो, तो काम कर रहा है, तो उसको आप कर सकते हो, वो इंटेंट सही है। बट अगर आप उनको पहले ही बॉल पे स्टेप आउट करके मारने जा रहे हो और अपना विकेट गवा रहे हो, और उसकी जरूरत ही नहीं है उस मैच सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली आप मोमेंटम ओपोनेंट को दे रहे हो, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो या आई थिंक यू नीड टू बी सेंसिबल, यू नीड टू पिक द बॉलर, यू नीड टू कैच द मोमेंटम ऑफ द मैच। सो दैट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तमीश भाई आप बताइए, आपका कुछ राय है इसमें? चलो इस बार थर्ड डाउन फर्स्ट डाउन उतरने का मौका मिला यार, अच्छी बात है। कम से कम ओपनिंग तो नहीं करवाई यार। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि यार कि हर बार ओवर अटैकिंग इंटेंट जो है ना वो बहुत खराब होता है। फिर अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको हम्म, लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो तभी आप अटैक करते हो सामने वाले के ऊपर। एंड जब आप सामने वाले के ऊपर एकदम सडन काउंटर अटैक कर देते हो, दैट मीन सामने वाला पूरा भौखला जाता है। तो देयर नो हार्म इन प्लेइंग द अटैकिंग क्रिकेट, बट मैच का क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या सिचुएशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो फिर आई अग्री विद दैट पॉइंट। दीपक भाई आप बताइए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ भाई आप सभी को बातों पे, कि हमें तब अटैक करना होगा जब सिचुएशन मतलब कि हमारे पक्ष में चल रहे होंगे, और वो नहीं मतलब कि जब हम अच्छे सिचुएशन में होंगे, जैसे कि लग रहा है कि 300 बना चुके हैं और उसके बाद अटैक करके थोड़ा खेल भी सकते हैं, जैसे कि अगर 300 बना चुके 4-5 विकेट बचे हुए हैं, तो उस समय अटैक करके अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो भाई, एक टीम में जो हमारा टीम है इसमें 2-3 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़ा मतलब कि टेस्ट वाले जो पहले टेस्ट खेला जाता था उस तरह से बैटिंग करें, ना कि अभी हम्म, जो खेल रहे हैं। तो अभी हमारा एक तो है भाई
3 प्लेयर तो दिख रहे हैं जो कि अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करते हैं। एक यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और ऋषभ पंत, जो कि सबसे ये मुखिया हैं ऋषभ पंत ही। तो ये मैं मानता हूँ कि 3 प्लेयर के अलावा और बाकी जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को चाहिए कि भाई टिक टिक मतलब टिक करके थोड़ा बल्लेबाजी करे तो ये ज्यादा बेस्ट होगा, इंडिया के पक्ष में जाएगा मैच। अगर सारे लोग जैसे कि शुभमन गिल भी अटैक करने लग जाए, फिर उधर रोहित शर्मा भी अटैक करने जाए, तो भाई मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल। क्योंकि वहां पे कम से कम 350 रन बनाने ही होंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। अगर फर्स्ट वैसा इनिंग्स। नहीं होता है तो फिर मुश्किल है। हम्म। बिल्कुल। तो गाइज मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि गाइज हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, स्क्रीन पे हाईलाइट करेंगे। बट अगर आपका क्वेश्चन लेने में थोड़ा लेट हो रहा है तो लाइव से दूर मत जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइव में बने रहिए। और हमारे जो भी दोस्त लोग आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं उनके अगेंस्ट में अगर आपका कुछ काउंटर अटैक है, कुछ ओपिनियन है, कुछ एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, उसका भी रिप्लाई जरूर देना कमेंट में। मैं सारे कमेंट्स ले रहा हूँ। और ये कमेंट आया है क्रिकेट कैनन भाई से, व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट अभिमन्यु ईश्वरन टू स्टार्ट ऑफ इन द बीजीटी? इमाम भाई। Yeah. So, firstly, Cricket Canon, welcome to live. Thank you for asking. So, Abhimanyu Ishwaran, as you all know, he's a first class gem. We can say that. Because according to recent his form, he has averaged around 85 in recent Ranji. 85. Would you believe it? 85 is not a small number in first class cricket. When it comes to, recent form I'm telling about. So, Okay. when you compare his overall average, it is about 49.5. So it is pretty good average in first class. You can say that he could be the player will look after like for test format, because just because of having Rohit Sharma as a test opener, we cannot replace this Abhimanyu Ishwaran as a test replacement for Rohit Sharma, because Rohit Sharma is, firstly, he has advantage like he's a captain of Team India, and second thing is like on Australian pitches, Rohit Sharma has capability to do something big. So we cannot say that we should have to replace, Abhimanyu Ishwaran with Rohit Sharma, because I have heard one rumor also. Rohit Sharma is like having some kind of leave for his personal reasons for BGT. First test, right? Yeah, BGT yeah. first For test. Yeah. yeah, for first test, team might not look Abhimanyu for first chance, because India A and Indian team going to play a match on 15th, I think, November 15th. So team will look after him, and team will look his form and his shot selection. So it is tough to select Abhimanyu Ishwaran, because there are a lot of players who are willing to perform, and you know there is no particular place for team players who are playing in squad. So we cannot surely say that अभिमन्यु ईश्वरन को प्लेइंग 11 पे ले सकते हो और अभिमन्यु ईश्वरन को खिला सकते हो, because he got selected for first series. So first series में चांस तो मिलने का वो तो चांस नहीं है, because team management might not look it as opportunity for a player, because टीम से ज्यादा प्लेयर को कभी भी नहीं देखते टीम इंडिया. I think he's there just as a backup opener in case Yashasvi Jaiswal or Rohit Sharma get injured, or because even KL Rahul has good stats, average as a opener in England and Australia. Australia, I don't remember, but in England and South Africa, he has good stats Yeah, as a he opener. has good stats, but according to recent form, we cannot select KL Rahul as opener, because he just gave up when it matters most. KL Uh, Rahul have been doing this since last 1 year in okay, particular test format only. I'm telling you. Forget about ICC final. ICC final is like unlucky thing that for him. is that is Yeah, another debate. yeah. So Abhimanyu Ishwaran is a good choice, but the thing is, team might not select him. But if select, Hmm. so he could be another Shubman Gill who could utilize the opportunity in Australia. राइट। दीपक भाई, आप आपकी राय बताइए थोड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन जो है खेले, क्योंकि मैं उनको लगातार देख रहा हूँ। अभी ईरानी ट्रॉफी हो या फिर ये रणजी ट्रॉफी हो या इससे पहले दिलीप ट्रॉफी था, हर जगह भाई उन्होंने परफॉर्म किया है।
इवन लास्ट सीजन का जो रणजी ट्रॉफी का लगभग इसी साल जो जनवरी में खेला गया था, जनवरी फरवरी के टाइम में, उस समय भी उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे सरफराज को हमने देखा कि टेस्ट में यहाँ पे आए, वैसे ही मैं चाहूंगा कि ईश्वरन भी अभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, जो कि इंडिया के हित में ही होगा। बाकी वो जगह अपना पक्के तो भाई अभी पक्की तो नहीं है उनकी, क्योंकि यहाँ पे रोहित शर्मा जब तक है, यशस्वी जायसवाल जब तक है, ओपनिंग स्लॉट अभी खाली है नहीं। तो हम्म, बस वो अनुपस्थिति जो है रोहित शर्मा का, वहां पे उनको मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई वहां पे अच्छे से ग्रैब करें और एक अच्छी इनिंग खेले अगर उनको मौका मिलता है तो, क्योंकि जी, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करना हर किसी का सपना होता है, और खैर सपना तो होता है कि इंडिया में डेब्यू करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करके अगर कोई सेंचुरी मार देता है या फिर हाफ सेंचुरी बना देते हैं पहले ही इनिंग में, तो भाई ये सबकी खास करके इंडियन जो प्रशंसक है उनके नजरों में आ जाते हैं, और एक सुपरस्टार बनने की तरफ उनको लोग, ऐसा मीडिया में खास करके होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। एक दो इनिंग से किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो देखना होगा कि क्या करते हैं उस मैच में। बाकी मैं इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, देखता हूँ क्या होते हैं, क्या करते हैं वो मैच में। राइट। सो अगर मेरा ओपिनियन दूं तो मेरे आई हैव two two perspective in this context. So number one, it's really good, and we should appreciate BCCI that they are looking into the players who are really performing well in the domestic tournaments, and they are getting the rewards for their consistent performance. And second is, like Imam Bhai said, हो ऐसा हो सकता है कि उनको ये पूरे सीरीज में चांस ही ना मिले। सो दिस इज हाँ, जस्ट लाइक ये भी हो सकता बीसीसीआई है। बस एक दिखावे के लिए उनको टीम में डाल दिया, स्क्वाड में डाल दिया है, बट प्लेइंग 11 में चांस ना मिले। तो ये मतलब उस तरीके से है बीसीसीआई में भी कुछ दिखा, हाथी का बोलते हैं ना, हाथी का दांत दिखाने का अलग खाने का अलग, उस तरीके का सीन भी हो सकता है। सो दैट इज हाँ, अनदर वो भी हो पर्सपेक्टिव। सकता है। But yeah, really happy for Abhimanyu Ashuran that he got the chance, he got the reward for his performance in domestic tournament, and it's high time that we choose the players specific to the format, not because of their face value or brand value. Yeah, agree with that. Let's take another question. So, Cricket Canon is saying, bro, 4-1 to India में भी मुश्किल होता है अभी की सिचुएशन में। या आई थिंक ये सीरीज अभी, हाँ, अभी से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते until unless ऑस्ट्रेलिया declare their squad, and then we can compare like to like one versus one player, and we can have a clear idea, because we also don't know the current form of Australian players in test cricket, right? But yeah, let's see. We'll take this prediction in the later segment, like Imam Bhai, Deepak Bhai, and I will predict what will be the series result. So stay tuned till then. Sadman has commented 3-1 or 3-2 to Australia this time. We'll see. We'll Maybe, see. but we cannot say that. uh, we'll see. Spectrum Bhai already commented India 2, Australia 3. Let's see. So you have already commented, but we'll take the question. WBC से पहले ही दिल तोड़ लेना है। And we have one more comment from Ujjwal. Our pace Yeah. bowling attack lacks experience. Assis will feed on it. Hmm. Yeah, I agree with that because our pace attack have been not same since 2023 after World Cup. Hmm. But I So think we will miss Mohammad Sami yeah, Mohammad big time. Shami will have to. Mohammad But Shami has accurate line and length. again, it's a opportunity for the youngsters. Like the last time we had the youngsters who had मतलब उन्होंने हाथ खड़े किए और अच्छा परफॉर्म करके जिताया था सीरीज. Yeah, So it's yeah, a yeah. good Natarajan opportunity have for, been a major performer. yeah. And that time I think all the combination of our players in the playing 11 was less Yeah, than their single player like Mitchell Stark or, completely they are inexperienced. yeah, they Completely, had they except had except Rohit Sharma and Rahane hmm, and Pujara. Pujara. So these three players only have some kind of big experience in terms of number of matches. So remaining Correct. players all are like they are youngsters. Shubman Gill and Prithvi. Uh, ऋषभ पंत, what I शुभमन mean गिल, to say, ऋषभ पंत, Shubman Gill Hmm. and
pacers No, who have been Natarajan, Shardul correct. Thakur, नटराजन, Washington Sundar. वॉशिंगटन सुंदर। No, तो भाई ये सब I क्या was है? मैं उज्जवल के कॉन्टेक्स्ट में ही बोल रहा था क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा बॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, राइट? Yeah, वी डिडंट हैड जसप्रीत बुमराह इन आवर स्क्वाड, ओके, दैट टाइम, सो एवरीवन पुट देयर हैंड and they won the match for us. So but Jayant, you should have to accept one more thing is hmm, every day is not a gabba not day. Okay. that is true. That is true. Yeah. So Australia might be, coming back to this particular test series strongest as they can. So one more comment from Fusion. Shubman Gill will be the player to watch out for in the BGT. I feel Australia may have the answers for Shubman Gill because he is not in the supreme touch, or you can say in that series, the last series BGT, he was pretty new to the test arena, and maybe Australia had taken him means For less granted. for granted. Their major focus was on Kohli, Rohit Sharma, Pujara. Pujara, I will say Pujara the most because they were really irritated with Puji. They Yeah. couldn't get him out. but So but we have to respect Pujara the kind of innings he have played. We can surely miss him from we for will miss him. upcoming. We'll miss Yeah. him because, like the initial question which we had, no, that attacking approach. अगर Yeah. आपके टीम में 11 का 11 प्लेयर एक ही अप्रोच से खेल रहे हैं, T20 अप्रोच या फिर अटैकिंग अप्रोच, तो वो कोलैप्स होगा ही होगा, राइट? यू नीड Yeah. one Pujara, you need a Rahul Dravid kind of player, you need a Ajinkya Rahane kind of player. So why earlier we were successful in BGT? Because Pujara from one end he stuck like विकेट वो रोक देता था एक एंड से, दूसरे एंड से जितने भी फ्री फ्लोइंग बैट्समैन हैं, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, वो रन स्कोर कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे हो गए, तो that is why Pujara is required in this squad. And I feel personally, I feel he has done everything in his hand. उसके हाथ में जो भी Yeah. था उसने सब किया है, उसने काउंटी क्रिकेट खेला है, उसने डोमेस्टिक खेला है आके, और ऐसा भी नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने परफॉर्म किया है अभी रिसेंटली, डबल आई थिंक डबल डबल सेंचुरी है हंड्रेड, भाई अभी हाँ डबल सेंचुरी किया है, रणजी में डोमेस्टिक लास्ट में, में डबल काउंटी सेंचुरी में है पुजारा सेंचुरीज का। किए हैं, and Rahane, I feel he couldn't perform consistently or good scores whatever matches he played in county and domestic. But Pujara, he has done everything. Yeah, you have to. एक्चुअली बीसीसीए जो यंगस्टर्स को सेलेक्ट करने का ये जो थॉट है ना, Hmm, hmm, इसलिए ये पुजारा और रहाने को ड्रॉप किया गया. hmm, That is the only reason which they dropped. Because yeah. BCCA wants to, establish a test team as youngsters who can perform. Hmm. On that time, Shubman Gill have been playing some extraordinary cricket. So they That feel time, particularly, yeah, after yeah. BGT, Hmm. No, I'll after give you one BGT, example. I will give you one yeah, example. Like you said, BCCI was trying to put in the youngsters. Okay, yeah, I agree. But which kind of youngsters? If you remember, the Australia tour of India, that time they, I think Pujara or Rahane, some they have excluded, and one more player was injured. I think Rohit and Virat were also not playing or something like that. And number four position, no, middle order, there was two positions were empty, and that time they didn't select Sarfraz Khan, but they yeah, selected Surya Kumar Yadav, and he played for yeah. one match. And after that, he is nowhere in the contention or in the selection criteria or whatever in the test arena. But why he No, played that like one I match? said, like I said just now, BCCA BCCA का जो selection कोई भी हो, irrespective of format, either it could be in test, either it could be in ODI or T20, whatever it could be. Hmm, इनका जो selection का there is no reason of selecting the particular player because when you look at 2019 World Cup particularly hmm, when Dhawan got injured, so they just bring one player from nowhere, Vijay Shankar, hmm, and after that, after BZT or after WTC final,
Pujara and Rahane got dropped. So there is no point by dropping some particular players and getting in some particular players. Even though in T20 formats also, Sanju Samson have been playing particular innings, Hmm. some extraordinary innings from 2023 IPL. But when there is T20 World Cup, he got selected for ODI ODI. format. Yeah. I For agree. if suppose there is a ODI World Cup, he got selected for T20 For games. T20, yes. Correct. So बीसीसीआई का जो सिलेक्शन क्या है ना, क्लाउन सिलेक्शन है. They don't need to win, they just want big names in their squad. Correct. And that's why I said in my previous point that you need to select players specific to the format, not because of their brand value or face value or blah Yeah, blah reasons. Okay, let's take this अभी point तो like वही हो रहा है ना, अभी uh, तो ऐसा uh, लग रहा था कि ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू के वजह से ही लोग चुने जा रहे थे टीम में। जिसकी hmm, ज्यादा आवाजें उठ रही थी सोशल मीडिया पे, उनका ही लगभग लगभग तय था टीम में आना। अभी आप देखो ईश्वरन का जैसे उठने लगा तो ईश्वरन भी टीम में आ गए हैं। अब इनको भी अगर 2-3 मैच खराब हुए तो इनको भी वापस फिर फेंक दिया जाएगा कि भाई जाओ आप रणजी वगैरह खेलते रहो। और मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली अगर एक बार जब ड्रॉप हुए ईश्वरन तो इनको शायद ही मौका मिल पाए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसे बहुत और सारे इसका प्लेयर्स हैं। इसका नहीं, बेस्ट एग्जांपल है दीपक भाई ऐसा. करुण नायर। करुण नायर Yeah, जी। Karun 300 Nair is क्रॉस। perfect example. हाँ, Karun Nair वो भाई having साहब some 13 loads of शतक runs. लगाने He के have been बाद भी scoring. Either it could be format, whatever the format. Either it could be T20, ODI, T20. I mean Test, whatever it could और be. He have एक been और scoring. नाम आता है अभी, अगर देखे तो ईशान किशन जो बिहार से हैं, इनके Hmm. साथ थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया इंडियन टीम में? मतलब बट आपका उसके ईशान क्या पास मानना किशन है? और टाइम है। ही हाँ, हैज he's a टाइम हाँ इन young. वो गेम। है, टाइम है, लेकिन उनको इग्नोर किया गया या नहीं, आप ये बताइएगा। मैं किया भाई गया है बिहार से हूँ, बट थोड़ा पक्ष ले रहा हूँ। हाँ किया बाकी गया है मैं बट उस ईशान देखो टाइम पे। दीपक भाई, अ, बोलिए बोलिए। ईशान किशन का रीजन क्या है ना, he हम्म, just takes some kind of leave while he's in squad. So बीसीसीआई को ये जो पसंद नहीं है, हम्म, when you are trying to, when team is trying to bring you some kind of role for you, so you just have to stick with team firstly. हम्म, मुझे लीव पे जाना है, मैं बाहर खेल नहीं सकता, मैं डोमेस्टिक नहीं खेलूंगा, इसका जो चाइल्डिश रीजंस तो भाई बता नहीं सकते, जो एज जो अकॉर्डिंग टू द उन्होंने सोर्स बोला विच था आई कि एम. भाई मैं मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो भाई वो लीव पे जब जा रहे हैं तो वो कैसे रणजी वगैरह खेल सकते हैं? वो तो भाई खुद भाई टेंशन में थे, नहीं वो नहीं नहीं। मेंटल भाई फटीग वी में आर थे। वी आर वी आर humans, right? As just like जी, us, Ishan Kishan also a human. Do you imagine, with a broken chin, Anil Kumble have played test format and took 10 wickets? हम्म, It is not about mental strength, or it is not about physical thing. You just have to भाई be उनका committed to जगह your भी तो team. टीम, आप अगर आप देखो तो ईशान किशन का जगह भी तो नहीं मिल रहा था ना टीम में। आप उन्हें ले जा रहे हो, हर जगह पे ले जा रहे हो। जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया उसके बाद उसको रेस्ट, मतलब कि हम्म, उसके बाद फिर दोहरा शतक लगाने के बाद रेस्ट, एशिया कप में अच्छा किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में रेस्ट। चलो मानता हूँ कि वो बैकअप थे। उसके बाद फिर जब वर्ल्ड कप के बाद जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच थे, वहां पे हम्म, भी उन्होंने लगातार 3 हाफ सेंचुरी लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में। उसके बाद भी उनको लगातार रेस्ट किया गया, उसके जगह पे जितेश शर्मा जिनको डेब्यू कराया गया और फिर उनको लगातार मौका दिया जा रहा है। भाई ऐसा क्यों? मतलब क्या जरूरी था कि ईशान किशन अच्छा खेल रहे हैं फिर भी जितेश को लगातार मौके दे रहे हैं? हाँ चलो दीपक वहां भाई। तक भी ठीक था, हाँ, कंप्लीट वहां कीजिए तक भी कंप्लीट ठीक कीजिए, फिर था। मैं बोलता हूँ। उसके बाद जो है कि फिर ईशान किशन को यहाँ जाना था साउथ अफ्रीका, 2 टेस्ट मैच का सीरीज खेलना, टेस्ट वाला। उसके बाद ईशान किशन वहां पे भी खेलते हैं और उनको पहले क्लियर कर दिया जाता है कि ईशान किशन नहीं बल्कि यहाँ पे केएल राहुल यहाँ पे विकेट कीपिंग करेंगे और वही खेलेंगे। तो ईशान किशन का वहां से भी पत्ता कट गया। ऐसे में भाई वो किसी के भी साथ ऐसा लगातार होगा कि वो अच्छा खेले, अच्छे परफॉर्मेंस दे, और उनको लगातार इग्नोर किया जाए। उनके जगह पे कोई ऐसे प्लेयर को दिए जाए मौके जो कि सीनियर है या फिर उनका बहुत ज्यादा वैल्यू है, चाहे उनका परफॉर्मेंस कैसा भी हो। तो ऐसे में भाई, तो ऐसे मतलब यही प्रॉब्लम रहा कि वो परेशान हुए होंगे, तो इस वजह से हम्म। मेंटल फटीग बोल के अपना बोले होंगे कि भाई मैं जा रहा हूँ थोड़ा, मतलब टीम से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन इसका क्या असर हुआ कि भाई देखो बीसीसीआई उनके खिलाफ ही बिल्कुल हो गई है।
नहीं, मैं इसका ये इसका टीम। आंसर देता हूँ डिटेल में, मेरे पास इसका जी आंसर है अच्छे से। तो जी मैं जी एग्री करता हूँ, आपने जितने पॉइंट्स रखे ना, ईशान, आप ईशान किशन के साइड से बोल रहे हो, मतलब एक तरीके से उनका जी। मैं पक्ष पक्ष रख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल, मैं पक्ष मैं पक्ष से किसी का बोल रहा पक्ष हूँ। नहीं रख रहा हूँ, मैं एज ए न्यूट्रल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म। इसमें प्रॉब्लम ये है, बीसीसीआई का पहला पॉइंट, मेजर स्टैंड ये है, प्लेयर कोई भी कितना भी बड़ा हो, वो डायरेक्टली बीसीसीआई के साथ पंगे नहीं ले सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली एक ऐसे स्टेचर में पहुंच गए थे, उनका इतना रुतबा बन गया था कि वो बीसीसीआई का डायरेक्ट ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे, या फिर बीसीसीआई को लगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें कहीं भी किसी भी मोमेंट में एक्सपोज कर देंगे, या सिलेक्टर्स को बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो उसी के चलते विराट कोहली को हटाया गया कैप्टनसी से, ये बोल के कि हमें सारे फॉर्मेट में एक ही कैप्टन चाहिए। जबकि उसके बाद आप देखो T20 में कितने कैप्टन बने, जी जी। वो तो कंसिस्टेंटली बात है। कोई नहीं रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि बीसीसीआई से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट ये है कि ईशान किशन के साथ जो भी मेंटल हेल्थ का इशू जो भी है, वो तो उनका पर्सनल है, हमें पता नहीं है, इतना डिटेल में कुछ आया हाँ नहीं वो है। तो है, ये मेरे को भी पता नहीं, बस हर किसी का जो अलग न्यूज अलग आई। तरीके से रहता है डील करने का। जो बात हम्म। बीसीसीआई के साइड से अच्छी नहीं लगी, या कोचिंग स्टाफ या दूसरे प्लेयर को अच्छी नहीं लगी, या एक खराब इंप्रेशन गिर रहा था, ये था कि उन्होंने मेंटल हेल्थ का ब्रेक लेके बोल के वो चले गए पार्टी करने दुबई में, दुबई, या या जितने भी इवेंट्स थे वहां पे सब वीडियोस आ रहे थे, राइट, उसी टाइम के ही है, बाद के या आगे के नहीं है, उसी टाइम पे वो सब कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे इवेंट्स वगैरह। तो वो एक हो गया, वो उनके नेगेटिव में गया। तीसरा पॉइंट ये आ गया कि अगर आप पार्टी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और दूसरा पॉइंट था कि उनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक में खेलो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करोगे तो आपको टीम में लिया जाएगा वापस से, ठीक है। उन्होंने इसको डायरेक्टली मना कर दिया, और उसकी जगह पे वो क्या कर रहे थे, वो हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर आप बोल रहे हो कि मेंटल हेल्थ का ब्रेक लिया है, तो पूरा पूरी खेल से ब्रेक लेना चाहिए, राइट। बट वो प्रैक्टिस कर हाँ रहे थे तो वहां ब्रेक पे। काफी लंबे टाइम तक ब्रेक चला था। आप देखो तो दुबई हाँ भाई, बोले तो ना कि वो गए वही थे बोल रहा हूँ ना, घूमने। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो कंप्लीटली ब्रेक लो। उन्होंने किसी एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हर किसी का मेंटल हेल्थ को इशू को डील करने का तरीका अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर किसी का अलग होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, पर्सनल डिसीजन में हम नहीं जाएंगे। बट जब आपको टीम की तरफ से बोला जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलो, तो आपका एक तरीका होता है, राइट। आप पर्सनल रीजन तभी एक्सप्लेन कर सकते थे कि नहीं, मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं फुल्ली रिकवर हुआ हूँ, मैं अभी भी जी रिकवरी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट मैं मैचेस नहीं करूंगा। ये उन्होंने क्लियर नहीं किया था। अगर ये क्लियर कर देते तो वही पॉइंट पे वो क्लियर हो जाता, फिर बीसीसीआई उनको सही से कंसिडर करती। बट आपका एक पॉइंट में सही से एग्री करूंगा, जो करुण नायर के साथ हुआ था, उन्होंने 300 किया, उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया। इनके साथ भी वही है, उन्होंने ओडीआई में 200 किया, अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उनको ड्रॉप किया गया। उसके पीछे का रीजन ये है, हाँ, बीसीसीआई वो ढूंढ मैं रही रीजन थी, जान रहा हूँ, तो उस समय रोहित बीसीसीआई ढूंढ शर्मा की जगह पर विकल्प के तौर पे खेल रहे थे वो। हाँ, तो तो बीसीसीआई उस टाइम पे ढूंढ रही थी कि ऋषभ पंत का ऑल फॉर्मेट में कौन एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो वो केएल राहुल को बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो बन जाए, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि केएल राहुल का भी इंजरी प्रोन चल रहा था, फॉर्म भी इतना कुछ ठीक ठाक नहीं था। तो वहां पे बीसीसीआई फेल हुई, और इसके चलते वो आउट हुए। वो बट उनके पास जी एक चीज अच्छा है कि उनके पास एज है, राइट, तो उनके पास हाँ, कमबैक एज करने है, का ये बहुत बात समय है। हाँ, लेकिन देखते हैं कि बीसीसीआई और इनके बीच का रवैया क्या रहता है, और आगे क्या ये टीम इंडिया में दिखेंगे या फिर ऐसे ही है। करुण हाँ, नायर बनकर रह तो जाएंगे। हाँ, तो अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि चैट में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, ऑडियंस में जी भी जी। सोच रहे हो कि ये लोग कुछ अलग ही डायमेंशन में चले गए। तो मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का एक एक प्लेयर कौन होगा जो आप सोचते हो कि प्लेयर टू वॉच आउट इन दिस बीजीटी। इमाम भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बहुत टाइम से चुप हो। मैंने शायद ज्यादा ही so एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। for Australia or for India? दोनों से आप बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का तो So I स्क्वाड अनाउंस feel, नहीं हुआ है। yeah, I feel Smith from Australia because he's out of form and he's playing for opening spot. No, no, So he just, he has cleared that he will play in the middle order. He is not going to open. so there is no proper statement, right? It is Yeah, just a rumor. statement. No, no, no. Statement. I think the statement has been passed. That's why So I Australian. think, Yeah. I'll go with the Australian player Labuschagne Okay. because From it. he, yeah, from Australia. So Hmm. like he has the ability to tackle Indian pace attack, and he'll play spin equally. Okay. I don't feel like uh, Jadeja or Ashwin gonna dominate him. So Hmm. he'll be the player to watch out for me. If suppose Smith comes for opening spot,
So he could be the player to watch. And when it comes to Team India, so I have two perspective, and one is for bowling perspective, and another one is batting perspective. So if suppose Harshit Rana got selected in playing 11, he could be the player to watch because Okay. he has some good pace and variations. So we can surely say that he'll be the one who can dominate Australia because the kind of length, as you can see in recent local first class matches also. So when it comes to batting, I'll say Shubman Gill because Shubman Gill has some kind of good touch and technique. So it could be good series for him to prove. Okay. Deepak bhai, your say a player to watch out in BGT. मेरा तो भाई ओपनिंग में दो मतलब बैटिंग में दो है इंडिया की तरफ से अरे देखे सब तो में बोल देंगे, यशस्वी एक जायसवाल। ही प्लेयर का नाम दीजिए, सब में से एक एक बोलेंगे तो पूरा टीम ही बन जा रहा है। अच्छा, तो मेरा बैटिंग से अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल है। ओके। और बाकी मैं मोहम्मद मोहम्मद सिराज को बॉलिंग में देखना चाहूंगा कि ये देखा जाए तो ये पिछला बीजीटी में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे वहाँ पे लीडिंग विकेट टेकर और शायद ये सारे मैच खेले थे वहाँ पे। और हम्म। यशस्वी जायसवाल को मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया में तो काफी अच्छे चले हैं अभी तक, और लेकिन एक दौरा इनका दक्षिण अफ्रीका का हुआ था तो वहाँ पे फेल हुए थे। हम्म। और जिस तरह का माइंडसेट के साथ ये खेलते हैं, अगर ये टिक गए तो भाई मैच में इनको देखने में बहुत अच्छा मजा आएगा। लेकिन अगर और लेते तो चलो छोड़ो, और लेंगे ही नहीं। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखे तो मिचेल स्टार्क को देखना बड़ा आनंददायक होगा अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन होकर थोड़ा देखे तो। बाकी मेरा एक और उधर से बैटिंग में अगर देख ले तो कोई खास तो नाम अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादा मैं स्क्वाड वगैरह देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया तो का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो हाँ, उसका तो अलग से करेंगे लाइव हम लोग, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जब अनाउंस होगा। तो मेरे मेरा So जो, tell me, Jayant, what is your player to watch? Who या, could be the one? I feel somehow Virat Kohli will be the player to watch out for, particularly in this BGT. Okay. My reason is, if you have followed Virat Kohli from his early days, whenever Yeah. he has failed in a particular series, and in the next series he has came out like all guns blazing. Best Yeah. Yeah. example is the England So he'll series. become beast. Yeah, and another example is like his last tour in 2014-15 of Australia. I feel he will repeat that tour again, and the simple reason is because he's been criticized for his form in the test, his technical fault in playing against the spin, blah blah blah. Whatever the reason, we know his mindset, and he should be the player to watch out for this BGT. My gut Yeah. feeling. Will surely agree with your point. But the thing is, when Virat is captain, he Hmm. have a attitude and hunger like no one. Hmm. So No, right now Virat this. Kohli is not a captain, and he just have to follow the captain's words. Like you don't have to be like that, and you just play like this. So Hmm. Virat Kohli, I think he didn't got enough freedom to express himself in recent Test series. So No, I can't really 100% agree with that point, but yeah, somewhat his full 100% passion or aggression comes from the when he is leading from the front as a captain. yeah, He has a different beast or different yeah, character altogether. But why I feel this time BGT it will be helpful for him because his focus will not get diverted with his field placement or which bowler or planning for opponent batsmen and others. So I feel his focus will be more on his batting, his contribution for the team, and that may help him big time. yeah. So that is my counterpoint, you can say. Let's proceed with the comments, further comments. Sadman is saying second BGT test will be day night test. Last time we played day night test, we know what happened. Pink ball test. Huh? Do you feel this time also we will struggle, Imam bhai, for pink ball test, day night test, or pink ball test? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible now?
Yeah, now you are audible. Yeah. So I don't feel like Australia are going to dominate us in night, day and night tests, because we have some young guns who can counterattack them with bat. So we can Hmm. surely say that. I Yeah. don't think so Australia gonna dominate us. ओके, दीपक भाई, आपका आपका राय पिंक बॉल टेस्ट या डे नाइट टेस्ट में क्या लगता है? लास्ट टाइम जैसा कुछ होगा, या मतलब हमारे पास भी प्लेयर हैं, जैसे इमाम भाई बोल रहे हैं कि हमारे पास भी प्लेयर हैं, हम भी अटैकिंग खेल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड डोमिनेट करेगी। नहीं, पहले तो ये देखना होगा कि वहाँ पे ओस वगैरह आती है कि नहीं आती है, क्योंकि भाई सेकंड इनिंग में बहुत खास करके शाम के समय जो होगा, रात का समय, वहाँ पे बॉलिंग करना आसान नहीं होगा, तो वहाँ बैटर्स के लिए मजे रहेंगे। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि बैटर्स को ये देखना, मतलब ये देखना चाहूंगा कि वहाँ समय कैसा रहता है, तो अभी कोई आइडिया तो नहीं है इसके बारे में। और ओके, सो याद भी नहीं आ रहा है कि पिछला बार क्या हुआ था। पिछली बार तो आई थिंक पिंक बॉल में ही 36 ऑल आउट हुए थे ना। अच्छा, पिंक बॉल वाला ही था वो। ये याद है भाई कि 36 पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन ये हाँ, पता नहीं कि वो क्या वो और पिंक बॉल टेस्ट उस था। टाइम पे पृथ्वी शॉ बोथ इनिंग्स लाइक इन स्विंग हुआ, और ऑफ स्टंप के बाहर से, और बोल्ड, क्लीन बोल्ड, बैक पैड के बीच में से गैप बना और क्लीन बोल्ड हुए थे। वो मुझे क्लियरली याद है, पृथ्वी शॉ का पूरा एक्सपोज हो गया वो सीरीज में, और उसके बाद से आई थिंक पृथ्वी शॉ का बुरा टाइम स्टार्ट हो गया है। Yeah, ओके। भाई he ignored खास after करके that समय series only. ऐसा है कि हम्म जो सो कहा लेट्स जा टेक रहा था कि मोस्ट। सचिन तेंदुलकर और मतलब कि सचिन तेंदुलकर और गावस्कर जैसे ब्रायन लारा के मतलब कि कॉम्बिनेशन है भाई साहब, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए वो विनोद कांबले बन गए, दूसरा उसका विनोद तो कांबले। कल कल के लाइव में हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, उसका तो शायद इस बार अनसोल्ड जा सकता है, वो इतना खराब टाइम चल रहा है उसका, और फॉर्म में नहीं मुंबई है, की रणजी में भी रणजी कुछ टीम से ड्रॉप जब किया बाहर गया हो है गए तो उसको। भाई, हाँ। जब मुंबई की रणजी टीम से जब बाहर हो गए तो आईपीएल में तो यार बाहर होना ही है उनको। हाँ, वही 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 डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल के लाइव में। ओके, सदमान भाई हैज कमेंटेड ऑस्ट्रेलिया प्रोबेबल 11, उस्मान ख्वाजा सेकंड ओपनर, बैंक्रॉफ्ट इफ पिक्ड, मार्नस, स्मिथ, मार्स, हेड, कैरी, पैट, स्टार्क, लैन, हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड। स्कॉट बोलैंड इज परफॉर्मिंग pretty well in domestic. What do you think, Imam bhai? Good playing 11, or do you feel any changes in this playing 11 Australia? I feel this is good playing 11, but the thing is, even though Scott Boland have been performing in domestic cricket greatly, but team may look after Hazelwood, I think, because Hmm. just Because of because his of Hazelwood is injured, in hmm. his place only Scott Boland have played. Scotland. Correct. So I don't think so. Scott Boland will be the one who can be in the playing 11, but a pretty good playing 11 actually. So I firstly, feel Usman Khawaja, हाँ and क्या then Bancroft, he can play very good innings, and Marnus Lapchin, as you all know, Smith, hmm. Marsh, Head. So I think this is the big headache for us: Marsh, Hmm. Head, and Carey, because these three players can hold their wicket. So we just Yeah, have to get these three wickets particularly. agree. And I feel Scott Boland is a kind of bowler who gets something from the hit the deck, you can say, or nip back bowler. But Hazelwood has that consistently. He will bowl in the line and length, and he will trouble the batsman, force the batsman to play wrong Yeah, shots. I, So I'll that agree, is Jayant. I'll agree. Completely agree with you. Because Hazelwood has some proper line and length who can never have. you He say can no, bowl really well. irritating bowler, irritating bowler for batsman. Yeah, yeah. अच्छा, ओके, आप दीपक लोगों भाई, का, आप बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का प्लेइंग 11 आप लोगों का कौन सा रहेगा फर्स्ट मैच के लिए। जाते हैं ना, क्वेश्चंस पहले खत्म Yeah, करते हैं, firstly, बहुत we'll सारे complete questions, Deepak bhai. या तो मेरा तो अभी क्वेश्चन का इसका कोई, मैं समझ ही नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया था। प्लेइंग अच्छा, 11 उन्होंने सेट किया है, उनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया: उस्मान हाँ तो ख्वाजा ये सेकंड। मिचेल मार्श और हेड तो भाई ये शुरुआत में शायद ओपनिंग करेंगे दोनों। हाँ, नहीं नहीं, मेरा तो मिचेल लग मार्श रहा है सेट क्यों करेंगे भाई? टेस्ट स्क्वाड है, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा है उनका ओपनर, और वो सेकंड ओपनर। ओपनर बोल रहे हैं। हाँ, सेकंड ओपनर बोल रहे हैं बैंक्रॉफ्ट, अगर पिक हुए तो, बट अभी तक उनका स्क्वाड कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो होल्ड करते हैं।
अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। You guys are thinking about Stark, Cummins, Josh, Lan. Out of syllabus will be Scott Boland. He can destroy Saki Indian batting. Yeah, Ujjwal bhai, quite agree. Yeah, we have Because seen this one, right? we have seen this, Yeah. and most of the time we prepared something and we get destroyed in the out of syllabus. It can So, be batsman, it can be a bowler. so for Both scenarios. every season, there is one out of syllabus question for particular team India. Agree, agree. So just like we have Scott Boland here in Australia, or all Robin Hood. I mean Robinson in Mhm. England, and in England. South Africa we have N Burger. So we have a lot of players who can destroy us. Okay, so Fusion has commented probably pace options Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Akashdeep, Nitish Kumar Reddy. I want to ask you. I think he has selected good. Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Akashdeep. I think they will play. Instead of Nitish Kumar Reddy, if you are trying to strengthen the batting, else I feel maybe Prasiddh Krishna or Harshit Rana will get the chance. What do you feel? दीपक भाई आप बताइए, फिर इमाम भाई बताएंगे अपना। नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी का तो अभी देखा नहीं हूँ मैं कि कैसा खेलते हैं, तो वो बाकी मीडियम अगर पेस बॉलर उनका है, ऑलराउंडर ऑलराउंडर है। पर अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस, मैं जानता हूँ कि वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट के तौर पे आ सकते हैं टेस्ट में। हम्म, हम्म, तो अगर वो अच्छे प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, खास करके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो मैं प्रीफर करूंगा कि इनको बैटिंग के साथ, क्योंकि बैटिंग भाई हमारा कोलैप्स हो रहे हैं। अगर आप हम्म, विदेश में देखो तो हमेशा हमारे बैटिंग जो है स्टार्ट होती है पांचवें छठे डाउन से ही। वहां से जरूरत पड़ेगी इनकी, अगर बैटिंग वो अच्छे कर लेते हैं तो मैं इनके साथ जाना चाहूंगा। जसप्रीत बुमराह, ये चार सही है। और ओके, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अगर रहेंगे तो थोड़ा सा बॉलिंग में ज्यादा मजबूती मिलेंगी, लेकिन ये तीन बॉलर्स जो फास्ट बॉलिंग है उनके साथ एक ऑलराउंडर भी सही है जो नीतीश कुमार रेड्डी। अगर बॉलिंग अच्छे कर सकते हैं तो भाई ये मेरा फर्स्ट चॉइस रहेंगे। बाकी ओके। देखता हूँ क्या इनको मौके मिलते हैं या नहीं, ये भी अभी थोड़ा देखने वाली बात होंगी। इमाम क्योंकि भाई। जो जो फर्स्ट मैच होगा वही मैच लगातार चलते रहेगा, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, वो तो है कि फर्स्ट मैच में जो टीम रहेगी लगभग वैसी ही टीम रहेगी एटलीस्ट हाँ, 3 मैचेस तक। अगर हम बहुत ही बुरा नहीं कर खेल रहे हैं तो। तो इमाम भाई आप बताइए आपकी राय। Yeah. So as Fusion told, probably pace options. हम्म, I'll say like Jasprit Bumrah could be the one. Firstly, first bowler for us, हम्म, and Mohammad Siraj as second bowler. I feel Akashdeep, not that good. I feel in Australian pitches. So I just wanted to include Harshit Rana as a third pacer because he has good line and length, and हम्म, he can bowl 145, speed, which Akashdeep हम्म, could not accurately. ओके, So Nitish Kumar could be my all-rounder option for batting purpose because his bowling I have seen lot in IPL and in local cricket also. So I feel हम्म, Nitish Kumar Reddy is not that good in bowling on the two Australian pitches. So I feel ओके, if suppose team wants to go with proper batting all-rounder, Nitish हम्म, Kumar can get a chance to play. So no, if not, so then it could be tough to make it in playing 11. हम्म। आई एग्री, आई एग्री। ओके, लेट्स मूव ahead. Sadman bhai is saying completely agree with Ujjwal. I think he is talking about Scott Boland option Yeah. destroying India. Fusion has commented best playing 11 for India. Abhimanyu, Jaiswal, Suman Gill, Virat, Sarfraz, Pant, Reddy, Ashwin, Jasprit, Siraj, Akashdeep. Bhai, where is So Rohit we'll Sharma? we will yeah, we will reveal each and every playing 11 at the end Hmm. of the live session. But अगर आपको कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं. This Hmm. playing 11 और player to watch out ये सब Okay. छोड़ दो. He's saying this is for first test only. Yeah, I yeah, think yeah. if the rumors are true, then I think this can be the ideal playing 11. But yeah, we'll come back to this question later. Question for Fusion Bro: who will be the captain of your Royal team? Oh, this is nice. This is nice. So if you feel this is the playing 11 for first test and Rohit Sharma is not available for that test, who will be captain for this test?
I will. जसप्रीत बुमराह. Jasprit Bumrah is the vice captain, which is announced. So I think Yes. yeah, it is easy. Vice captain will be the captain because Virat Kohli he will not take the captaincy. नहीं नहीं. Uh, so it is Jasprit It is Bumrah. ideal one actually. Hmm. Bumrah could be the captain because he's the vice Fusion. captain of Team India right now. Yeah, yeah. If the vice captain was not announced, then it could have been a kind of Yeah, point of debate who should be yeah, the I'll captain. agree with you because there is a vice captain who can lead. Okay. What? So next question is who is the best slip fielder from Australia and Yeah, India? this is question which I am looking for. This is kind of questions are some Hmm. some fire. So Yeah. tell me, tell me, bro, who could be your best slip fielders for India and then in Australia? I feel the best पहले fielder for दीपक भाई आप India. बोल सकते दीपक भाई अगर आपको याद आ रहा है बोलिए मुझे तो जो याद आ वो रहा है वो तो स्क्वाड में नहीं है हैं? आई वो तो वाज थिंकिंग अजिंक्य रहाणे थे. हाँ अजिंक्य रहाणे आई कैन विजुअलाइज अजिंक्य रहाणे ओनली इन द स्लिप फील्डर बट नहीं भाई, पहले तो स्क्वाड में जो कोई भी है उसका बोल दो। आउट स्क्वाड ऑफ बॉक्स में मत हाँ जाना। तो आई फील अभी थोड़ा यशस्वी मेरे को अच्छा जायसवाल लग इज रहा है कि हाँ doing यशस्वी really जायसवाल well अच्छे in the लग रहे हैं. slip squadron and Shuman Gill. These two I feel because Virat Kohli he will not be in the slip fielding most like first slip, second slip. He may be there in the third slip. But yeah, I feel Yashasvi Jaiswal and Shuman Gill. बिल्कुल मेरा भी वही बात है कि यशस्वी काफी अच्छे हैं स्लिप में हो या फिर बगल में जो उसको साथ गली बोलते हैं. तो Hmm. वहां पे दोनों जगह भाई यशस्वी काफी अच्छे फील्डिंग करते हैं और उनका मैं देखा हूँ हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो जबरदस्त है. तो मैं चाहूंगा कि And वही रहे स्लिप में. from ये Australia, ऑस्ट्रेलिया का बता दो। Smith. Smith is really good in slips. Who ऑस्ट्रेलिया else? का. Who else? Who else? हाँ Uh, स्मिथ का ज्यादा है फिर फिर who else? कौन है भाई एक. Labuschagne does field in slip. Labuschagne, no, Labuschagne won't do No, at he slip. doesn't. Uh, So um, I don't know. Smith is only I can remember who fields in slip. so Your take. my picks are for India. Obviously, Team India has some gun fielders. So my Hmm. first option could be Yashasvi Jaiswal because we have seen the kind of catches he has taken. Yeah, Huh? yeah. So the second one could be Virat Kohli, obviously. So Hmm. right beside after first slip, after Rishabh Pant, he could be the Hmm. one. And Okay. after him, there is a guy called KL Rahul who have been taking some good catches. But will But he be in the playing yeah, 11? yeah, he will. He Yeah, will he because will. India is playing in Sena countries, right? So he will be in the squad. Okay. So if not, if KL Rahul not in the squad, then Hmm. Gill could be my third option for slip. Okay. So when it comes to Australia, I'll go with Smith actually. But there is a big gap, like uh, as we have seen in previous series, Hmm. Australia has some best fielders in slip: David Warner, Chris Green, and Ah, Smith. both are So not right playing now, this time. yeah, right now these two players are not in playing 11. Yeah. So I feel first slip could be Bancroft because Hmm. he's a keeper, so he has a some kind of good eye on ball, I think. Okay. And for third option, I feel there could be head or something, some other one. Head is Head also I a good option. feel head is also popular. But Yeah, uh, yeah, let's move it because I think it will be easy to answer once they announce the squad. But yeah, yeah. good question, Sadman bhai. Really good one. Aditi is asking why not Gill captain? Most simple reason because vice captain is already announced in the squad. So if captain is not available, vice captain will be the captain. So it's easy one. Fusion is saying Steve Smith from Australia, Virat Kohli from India as slip fielder. Agree with you. Then Sadman Bhai is saying best slip fielder for India, Rohit Jaiswal, Australia Smith always. Yeah, bhai. Rohit is also good in slips. KL Rahul, best slip fielder. If you know, you know.
I know, Aditya. आदित्य इज सेइंग अगेन Australia bouncer. ऑस्ट्रेलिया कौन सा प्लेयर को डेब्यूट कराएगी विराट को आउट करने के लिए? ऑजी माइंडसेट भाई, कोई ना कोई तो ढूंढ के ले आएंगे, या फिर किसी को पार्ट टाइमर को ले आएंगे, वो बॉलिंग करेगा, ले लेगा। हेड हेड भी तो बॉलिंग करता है ना, हेड को दे देंगे, जा भाई बॉलिंग कर, ले लेगा वो No, भी। no, no. There is a guy called Spencer Johnson. हाँ So हाँ I हाँ। think I feel Spencer Johnson could be in playing level. I mean, in the squad हम्म। because he has good pace Yeah, I have seen him. and he But have he hasn't debut in Test, right? He has debuted yeah, in ODI and T20. yeah, and Okay. he can contribute very well with bat also. Hmm. He's very good with bat. Sadman is saying Mitch Marsh will be filled on Gully in place of Cameron Green. Okay. Fusion is saying Boland तो खेलेगा ही. क्यों क्यों भाई फ्यूजन भाई आपको इतना ऑब्सेशन स्कॉट बोलैंड पे क्या हुआ? I You are think. completely obsessed with Scott Boland. नहीं, ये So चाह we'll रहे हैं move ना कि to जो सेजलवुड बाहर हो जाए। इनका ये मानना हम्म, है कि जो सेजलवुड बाहर हो जाए ताकि हमारे ये जो बिग बैश टॉप ऑर्डर में आएंगे। बिग बैश में किसी को इंजर्ड कर दो यार। तो हो सकता है। हमारे इंडियन बिग वहां बॉस पे में नहीं तो है, इंजूर नहीं तो करने से भी पहले करेंगे। ही स्क्वाड अनाउंस करेगा ना भाई. हम्म। Big Boss is नहीं playing उनका। on December 15th. हम्म। So BGT series is like November 22nd, which means they are playing BGT before Big Boss only. So there ओके। is no reason in selecting Big Boss injured player as replacement for them. राइट राइट। Okay, I think we have taken all the comments. Okay, one more comment has come. This series will be between Head versus Rohit in terms of opening impact. As जो अच्छा start देगा वो upper hand लेगा both key players. But I don't think Travis Head will open because he has not good starts as a opening. He has good starts in the middle order, lower middle order, you can say. Yeah. But what's your take, Imam bhai? Do you feel कि हेड को No, I ओपनिंग don't कराएंगे? think so. अगर अगर हेड को ओपनिंग किया तो इनको हम्म। मिडिल ऑर्डर पे बहुत स्पेस मिलेगा. हम्म। They don't have a player to complete that void. हम्म। हेड का जो प्लेस है ना उसको रिप्लेसमेंट को दूसरा प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा. हेड इज ए प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर टेस्ट. सो And आई डोंट थिंक I feel ऑस्ट्रेलिया कैन टेक रिस्क. he has filled the playing 11 like Gilchrist used to do in the lower या middle order. Like he used या to contribute with the lower order, and as per the match situation, means he can play attacking cricket, he can play defensive, or Yeah, as per the it is game depend situation. upon the current situation of the team. It is like if team is in risk, he'll play in as we have seen in recent test series also. He'll go Hmm. attacking mode, or else he Right. should have to hold his wicket. He'll go defensive mode. If Australia change heads batting order, then their means strategy, or Yeah, you can say whole team combination will be jeopardized. So I don't combination will be changed, and the team balance pattern will is not be there. completely in. It could be in danger Right. because they have some kind of proper plan against Indian pace attack, which is about as middle order batters. So Sadman has commented Spencer Johnson, Javier Bartlett, Aaron Hardy, some young new talents of Australian pace. भाई Yeah, we'll स्पेंसर को मैंने agree, जानता but हूँ. yeah, even I know all these names, but the thing is, ये तो T20 फॉर्मेट में बहुत तगड़ा बॉलर है सब लोग. बट ये सबको लॉन्गर चांस नहीं फॉर्मेट में मिलेगा. या लॉन्गर फॉर्मेट में like I don't feel I feel like they don't have enough patience to bowl that many overs हम्म. because Aaron Hardy he's like proper batting all rounder in the sense his first priority is batting only, not bowling. हम्म. So Team Australia cannot include him in the squad, firstly, ओके. as a batter. So when it comes to Bartlett and Johnson, Bartlett has some good pace, but he's expensive with ball in T20 format. Spencer Johnson is same similar to Bartlett. Actually,
शतमान भाई ने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया बॉलर्स को। Hmm. ये सिमिलर बॉलर्स है सब लोग, 3 लोग, who Hmm. can pick wickets and who can be expensive with ball. Right. So I feel तीनों को तो मौका नहीं मिलेगा. Like you Yeah, said, maybe Spencer Johnson is the one I think they can add in the squad, but playing 11 में depends थोड़ा as per मुश्किल the होगा इंक्लूड करने के लिए। right, right. Let's take another question. Fusion has commented, I am talking about Boland for the first time, as in last WTC final. Boland had troubled VK many times and dismissed both times. Yeah, And yeah. one more counter comment is there from Sadman is saying Mitchell Stark dismissed VK in the first innings of WTC 23. So let's check the fact. आप लोग बताइए इसके ऊपर अपनी राय. मैं चेक करता हूँ कि कौन सही है Uh, कौन गलत I है. think in first innings, Mitch Marsh have taken wicket. Okay. Yeah. So WTC final स्कॉट 2023 बोलैंड क्या तो है? रहाणे का विकेट लेने का देखा था मैं। Hmm. So I'm checking the starts from Crick Info, ESPN Crick Info. So विराट कोहली स्टार्क ने लिया है भाई. फ्यूजन भाई थोड़ा आपका डाटा गलत हो गया, बट पॉइंट इज गुड. Yeah. Let's take another question. Aditya Bhai is saying every team has good part-time spinner. England has Root, Australia has Smith Head, South Africa has Markram, India lacks here. Yeah, Good agree. point, I Aditya agree Bhai. with that. But why this has happened, Imam Bhai? Or do you feel because we have quality spinners like Ashwin and Jadeja, that's why we don't need part timers in our test squad? Or Yeah, I feel firstly, I feel BCCI or Indian cricket management are obsessed with batters particularly. Even though fans also, hmm, fans are hyping batters only. hmm, But bowlers are the game changers for the tournaments. Batters may win you the particular matches, but bowlers wins you the tournaments. We have seen this statement in lot more games because Indian fans are obsessed with batters. So why would they go with particular player who can bat and who can bowl as Yuvraj Singh and Suresh Raina did in the past? hmm, So that is the reason why we are very BCCA are very obsessed with finding proper number 4 before Cricket World Cup. right, So they don't have a particular reason to choose some particular players, even though they have some qualifications. So we and just need a spinner because Jadeja is not a complete batter in my opinion. Because hmm, maybe for CSK he have done very good with bat, but according to Team India perspective, he did nothing except that 2013 Champions Trophy and 2019 semi-final. hmm, I don't think he did very well for India with bat. I'm saying with bat. yeah, yeah. So Deepak bhai, your take. Then I will put my point. आपकी क्या राय है? हाँ, मेरा भी वही मानना है कि इंडिया में खास करके अगर देखो तो पार्ट टाइम बॉलर नहीं होने का रीजन है कि अभी जडेजा और अश्विन है कि उनके अलावा बॉलिंग आती ही नहीं है किसी को। मतलब कि Hmm, उन इतना दोनों लगातार बॉलिंग करते हैं कि इनके अलावा फिर पार्ट टाइमर की उतना जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बैटिंग भी अच्छे कर लेते थे। खास करके hmm, टेस्ट में, वनडे और T20 की बात नहीं कर रहा। hmm, और टेस्ट मैच में अच्छे बैटिंग भी कर लेते थे और बॉलिंग भी अच्छे कर लेते थे, तो इस वजह से कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे बीसीसीआई लगातार या फिर कैप्टन्स जो हमारे रहे हैं, तो वो चीज़ को थोड़ा-सा ढूँढने में थोड़ा-सा लगता है दिलचस्पी वगैरह नहीं दिखाए हैं कि एक पार्ट टाइमर भी होना चाहिए, या फिर hmm, जैसे कोई हमारे पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, उनको भी मौके नहीं मिलते हैं मैच में। अगर आप देखो तो इस स्क्वाड जो हमारा टीम है, इसमें कुछ लोग हैं जो कि बॉलिंग कर सकते हैं। आप hmm. चाहो तो यशस्वी जायसवाल शायद कुछ जसवाल, बॉलिंग करते हैं। सुमन गिल. जी, अगर इन लोग से लगातार बैटिंग के साथ-साथ अगर प्रैक्टिस कराया जाए बॉलिंग का, तो ये लोग बॉलिंग भी मैच में कर सकते हैं, और मैच में अगर इनको मौके मिले तो हो सकता है कि बड़े मैचों में भी कभी-कभी काम आ जाए। जब कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारे प्रॉपर बैट्समैन, खास करके जो बॉलर्स जो होते हैं 5 बॉलर, अगर वो लय में नहीं होते या फिर उनको सामने वाला टीम जो है पढ़ लेती है, तो वैसे में भाई Hmm,
जो पार्ट टाइमर आते हैं वो बड़े विकेट निकालने में और पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कामयाब होते उनको हैं। बहुत लोग नहीं समझते हैं कि कैसा वो बॉलिंग करते हैं। और ओपोनेंट आप बैटर्स वो सोचते हैं कि ये रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है और रिस्क हाँ, लेने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं। रिस्क भी ले लेते हैं कि भाई हो सकते हैं कि इसमें अच्छे रन आ जाए तो रन बनाने जाते हैं, और हम्म। वैसे में ही कुछ गेंद ऐसी पड़ जाती है जो कि अनप्लेबल उनके लिए हो जाती है और विकेट मिल जाते हैं। जी तो बिल्कुल। ये चीज है, पार्ट टाइमर होना चाहिए। अभी आप देखो कि एक श्रीलंका का भी मैच याद आ रहा है हाल ही वाला, तो वहां पे सूर्या और रिंकू सिंह ने वो ओवर कर रिंकू, दिया, 19वां और 20वां अरे ओवर। रियान परग ने भी बहुत सारे विकेट निकाल लिए उस भाई सीरीज में। वो तो ऑलराउंडर हैं, मैं मानता हूँ वो ऑलराउंडर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हम्म। है वो। और हम्म। असम के लिए बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, मैं आश्चर्य हो गया कि भाई ये दोनों को क्या किया जा रहा ये तो है। और भाई जीजी दोनों, जीजी एरा है ना हाँ दोनों वो। ने मिलकर मैच जिताया वहां पे। तो वही हम। होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि ये क्या कर लेगा और उसके खिलाफ मारने जाते हैं और उसके खिलाफ आउट हो जाते हैं। तो ये होना चाहिए पार्ट टाइमर मौके, कभी कभी खास करके टेस्ट में देने में कोई दिक्कत नहीं है, 20 रन चले भी जाते हैं तो क्या हुआ। हम्म। लेकिन आई फील। उसमें अगर विकेट, हाँ। जी, नहीं नहीं, कंप्लीट कंप्लीट कीजिए फिर मैं बोलता हूँ मेरा। हाँ वही बोला कि अगर उसमें जैसे कि 20 रन मारने भी या फिर 10 ही रन बनाने चले गए तेजी से, और वही में अगर विकेट मिल जाते हैं तो भाई वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो हमारे राइट। बैटर थे, लेकिन 2-3 विकेट भी ले गए। आप देखोगे तो ट्रेविस हेड यहाँ पे कई बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कर चुके हैं। मैंने देखा, ट्रेविस हेड को कई बार देखा है, वो शायद प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं थे, वो बैटर थे, लेकिन उनको हम्म। लगातार कई बार उनको मौका मिला और वैसे वैसे मौके पे उन्होंने कई बार विकेट चटका दिया। और ऐसे जी। कुछ जो रूट का भी इसी तरह है, वो भी ऑलराउंडर प्रॉपर नहीं है, लेकिन उन्हें वो तो पार्ट टाइमर। उन्हें तो ऑलराउंडर इंडिया ने बनाया है ना। इंडिया का हाथ है उसमें। ट्रेविस हेड को भी लगता है बनाने में इंडिया का योगदान है। जी बिल्कुल। ओके, मेरा पॉइंट है इसमें कि पर्टिकुलरली मैं टेस्ट का बोल रहा हूँ, क्योंकि ओडीआई और टी20 का जिस तरीके से गेम का रूल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से आई थिंक पार्ट टाइमर का रोल बहुत मिनिमाइज हो गया है। बट टेस्ट में बिल्कुल जरूरत है हमें पार्ट टाइमर की। उसका मेजर रीजन ये है कि जो नहीं मिल रहे हैं, पार्ट टाइमर नहीं बन रहे हैं, हमें इंडियन टीम में देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसका मेजर रीजन ये है कि हम दो तरीके के पिचेस बना रहे हैं, या तो एकदम ग्रीन पिच मतलब पेस को हेल्प करे, या फिर एकदम ही स्पिन स्पिन फ्रेंडली, मतलब 2 दिन में 3 दिन में मैच खत्म उस तरीके का। तो अगर स्पिन फ्रेंडली है, ऑब्वियसली आपके मेन स्पिनर तो विकेट चटका जाएंगे, तो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पार्ट टाइमर की, राइट। बट अगर पुराने मैचेस का आप देखोगे, जहां पे टूर करते थे या फिर जो इंडिया में होते थे, वो स्पोर्टिंग विकेट होते थे, जिसका मतलब दम लगाना पड़ता था बॉलर्स को, तभी जाके आपको विकेट मिलेगा। तो उसमें आपके मेन बॉलर्स जो हैं वो टायर्ड होते थे, या फिर उनको आप बैक टू बैक इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। उस कंडीशन में आपको पार्ट टाइमर की जरूरत है। और दूसरा पॉइंट तो दीपक भाई ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि पार्ट टाइमर कभी कभी आके किस तरीके से पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं, कि ओपोनेंट के बैट्समैन उनको रिस्क लेने जाते हैं रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी सोच के, और उसमें वो गलती कर बैठते हैं। ये एक पॉइंट है। और जो अभी के इसमें दीपक भाई ने कहा कि टी20 में वो स्टार्ट हो चुका है, पार्ट टाइमर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो या बिल्कुल टेस्ट में भी होना चाहिए, और आशा करते हैं कि गौतम गंभीर उनका जो टी20 में यूज कर रहे हैं पार्ट टाइमर, इसमें भी करें। बट डिपेंडिंग अपॉन द मैच सिचुएशन, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको करना ही करना है। बट अगर रखेंगे पार्ट टाइमर तो ऑब्वियसली हेल्प होगा। ज्यादा बेस्ट रहेंगे, राइट। वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, जितने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन उतने ज्यादा अच्छा रहेंगे। और एक और मैं बात यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का थोड़ा सा लेना चाहूंगा। यहाँ पार्ट टाइमर नहीं आने की वजह इम्पैक्ट प्लेयर हो गया कि वहाँ पे ऑलराउंडर की अब कोई भूमिका ही नहीं रही, तो भाई पार्ट टाइमर का तो छोड़ ही दो आप। हम्म। आईपीएल में कोई पार्ट टाइमर को आप बॉलिंग अब करते शायद ही दिखेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर तो वहाँ पे खेल ही नहीं रहे, वो ऑलराउंडर जो खेल रहे हैं वो बॉलिंग कर ही नहीं रहे, तो पार्ट टाइमर की तो हम्म। बात ही मत करो यार। तो जी ये जी चीज बिल्कुल। मेरे अनुसार इम्पैक्ट वाला रूल जो है वो हटा देना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए तो ये 2027 तक रहेगा, जैसा कि बीसीसीआई का जो रूल आया था उसमें बताया जाता कि हम्म। 2027 तक ये रहेगा। तो अभी भाई इम्पैक्ट प्लेयर हटा तो नहीं सकते। बस यही उम्मीद करेंगे कि जैसे टी20 में स्टार्ट हुआ पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराना, वैसे ही वनडे और टेस्ट में भी कराया जाए, ताकि हाँ। इंडियन इंडियन क्रिकेट और थोड़ा सा अच्छी जगह पे जा सके, और मुश्किल सिचुएशन में कुछ हमारे पार्ट टाइमर विकेट निकाल सके। तो सलमान चलिए भाई का आगे बढ़ते कमेंट हैं। आया है
सुदमान भाई का कमेंट आया, मुझे पूरा स्कोर कार्ड याद हो गया है, WTC 23 फाइनल। हाँ भाई, पता चल रहा है आप जिस तरीके से ऑन पॉइंट बता रहे हो, मिस्टेक्स बता दे रहे हो, तो सही है, बढ़िया इसके है। इसके बाद भी बहुत कमेंट्स आ गया भाई, हम तो बहुत हाँ ज्यादा डिस्कस किया ये टॉपिक। हाँ, मैं ले रहा हूँ कमेंट्स। सलमान भाई का और एक कमेंट है, मानस इज ऑल्सो प्रेटी वेल विद द बॉल, ही प्लेड एज ऑलराउंडर इन अर्ली डेज। भाई मैं उसका बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, वो ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा बॉलिंग करता है। और रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें वो फील्डिंग सेटिंग कर रहा था अंपायर के बिल्कुल पीछे। तो वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो एक कैरेक्टर है। Aditya Keshwani is saying, I remember how Raina and even Kedar Yadav also good part timer and can take wicket also. Agree, bhai. Fusion is saying, I think Nitish Kumar Reddy will definitely make his debut in this series because BCCI fast tracked him for his all round abilities, who can bat and ball, as we have seen that Sardul had done the job. फ्यूजन भाई, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है, ठीक है। शार्दुल को जिस तरीके से फास्ट ट्रैक करके लाए थे, अभी वो कहाँ है? सेम चीज नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी हो सकती है। पूरा पूरा मतलब बीसीसीआई पे मुझे भरोसा है। आप लोग बताइए, इमाम भाई आप बताइए आपकी राय। Like Fusion Bhai, as you said, Nitish Kumar Reddy obviously he can play. He can surely be in the squad. But the thing is, शार्दुल ठाकुर को जैसा यूज करके पर्टिकुलर सीरीज को, आफ्टर दैट दे नेवर लुक आफ्टर हिम। शार्दुल ठाकुर को कभी भी बीसीसीआई बैक नहीं किया गब्बा सीरीज के बाद, पर्टिकुलर गब्बा जीत के बाद। राइट। एक दो सीरीज चांस दिया, बट शार्दुल ठाकुर परफॉर्म नहीं किया, उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे उस पे। सो जस्ट लाइक नीतीश कुमार रेड्डी इज प्रेटी गुड बैटिंग ऑलराउंडर आई कैन से, बट उसका जो उतना पेस उतना अच्छा नहीं है इन माय ओपिनियन, because ओके। he cannot bowl over 140s accurately. Team wants to be a player who can bowl 140s and 150s, particular in Australian tour. So I don't think Nitish Kumar Reddy could be a proper bowling all rounder, but he's good batter I can say. दीपक भाई आप बताइए आपकी राय। जी, मैंने तो शुरुआत में ही कुछ बोला था इनके बारे में, तो इनको हम्म, मौका मिल सकते हैं इस सीरीज में। और ओके। मैं यही देखना चाहूंगा कि इनका बैटिंग बैटिंग तो भाई नो डाउट बहुत अच्छे है इनका, लेकिन बॉलर रणजी वगैरह में कैसा परफॉर्मेंस किए ये पता नहीं अभी, तो थोड़ा सा देखना होगा कि ये अभ्यास जो मैच होगा, प्रैक्टिस मैच, तो वहां हम्म। पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या वो 10 ओवर लगातार, 10 ओवर नहीं 4 ओवर लगातार फेंक सकते हैं क्या? क्योंकि अच्छा, ये कभी कभी होता है। प्रैक्टिस मैच से याद आया, दिस टाइम डू यू हैव एनी प्रैक्टिस मैचेस बिफोर द बीजीटी सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया? या Yeah, we इंडिया have वर्सेस one. इंडिया है। हाउ मेनी? इंडिया वर्सेस इंडिया है। इंडिया वर्सेस इंडिया है। Yeah, जी, India A प्रैक्टिस against मैच India. है। ओके। ओके। तो वहाँ पे कैप्टन है हमारे ईशान किशन, उस टीम में है, लेकिन कैप्टन है No, 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 no. ऋतुराज गायकवाड़। Rutraj Gaikwad is captain. या वही मैं बोल रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है और ईशान किशन उस टीम में है, अभिषेक पोरेल भी है। और बाकी और बहुत सारे प्लेयर है, मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि कौन कौन से प्लेयर हैं। तो ओके। वहाँ पे देखने वाली बात होंगी, वहाँ से भी हो सकते हैं कुछ प्लेयर्स मेन टीम में आ सकते हैं जब यहाँ पे जरूरत पड़ी तो, और उनका परफॉर्मेंस अगर उधर अच्छा निकल गया तो। हाँ, दो ओके। प्रैक्टिस मैच है इंडिया का, एक है इनके साथ, इंडिया ए के साथ, और एक है PM11 ऑस्ट्रेलिया का, जो PM11 है उसके प्राइम साथ है। मिनिस्टर 11 ऑस्ट्रेलिया का। ओके। जी, तो वो ओके। पहला टेस्ट के बाद है। ओके, ठीक है। आई थिंक देन इट शुड बी गुड एनफ प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन लेते हैं आगे। आदित्य भाई बोल रहे हैं, आज स्मृति ने 100 बनाया, उस पे कौन बात करेगा हाफ फैंस? भाई इस पे बात बात ऑलरेडी कर हो चुका चुकी है। है, आप थोड़ा डिले ज्वाइन हुए हो, तो इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग जब लाइव स्टार्ट कर रहे थे। तो डोंट वरी, हम लोग हाफ फैंस नहीं है, हम सारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। बट या, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग द पॉइंट्स अगेन हु हैव जॉइंड लेट। तविश भाई बोल रहे हैं, अभी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या सर? भाई अब बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे सीनियर मोस्ट ब्रॉडकास्टर हो। मेरा ही ओके, समी पोस्ट आफ्टर बीजीटी स्क्वाड। हाँ, आई थिंक मैंने देखा था, उन्होंने कुछ कहा था कि दुखद हैं और सॉरी सॉरी मांग रहे थे सबसे कि वो टाइम पे रिकवर नहीं कर पाए बीजीटी स्क्वाड सीरीज के लिए। तो आई थिंक इट्स ऑल
good only I because think we after have all, to he's a human respect being. that Yeah, he because tried his best. Yeah. Shemi is considering fans' emotions and team emotions also because he can say like rudely also team not selected, BCCA not selected me. I have done Mm, everything for the team, so he has a chance to say everything, but agree. he never did. So we should have to respect Shemi for respecting the BCCA selectors. Mm. Fusion has commented, I think NKR will be more batting centric all rounder, and in fourth pacer we don't need 140 plus bowler, but the key aspect will be to bowl in same length and line. By yeah, that will be the key. But I Yeah, feel I agree, Fusion. Australian batters won't be that much impacted with the same length and line. You need Um, to, I think, yeah, I be got you, smart. Fusion. I'll Smart. answer this. I'll answer Hmm. this. Yeah, yeah. See, Nitish Kumar Reddy is proper batter because we expect him to score because as he did in SRH, as he did in local Ranji matches for Andhra and for local teams. Firstly, it is not about speed, 140s or 130s. So if you bowl medium pace at 120s and 130s, Australian batters will kill you. Firstly, because even Australian tailenders would hit for six for 120s and 130s. Hmm. So we have to afraid of that tailenders because batters might have some positivity and some kind of advantage. But if bowlers are hitting you, that could be biggest what I say, that could be become as some mental stress for bowler, And those scores will be the key crucial difference for the between, team. yeah, those 50, 60 odd runs, that will be the major factor deciding the Yeah, match result. for particular Team India and India A squads, there are players who are who can bowl 130s and 140s accurately. But the thing is, team is looking for a pacer who can bowl 140s up accurately. So I don't think Nitish Kumar Reddy can have that kind of capability to handle 140s at on that pitches. ओके, दीपक भाई आपकी राय? वैसे सबसे पहले मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे कोई विकल्प है क्या? Yeah, he could तो be the next big thing. NKR. वही तो चल रहा है ना, इसीलिए तो उनको फास्ट ट्रैक करके लाए हैं। वही चल रहा है, और हार्दिक कोई? पांड्या का विकल्प ढूंढा NKR जा रहा है। NKR could be the biggest thing. I'm अच्छा, surely say that because maybe if team wants to perform him with ball, he can be some conceding many runs and he can be expensive. But if team backs him as bowling all rounder, he could be the performer to watch out. So, like Deepak Bhai asked, no, I have a question. Like, Yeah. especially for BGT and WTC, if means team has qualified for WTC, do you think like BCCI should have asked Hardik Pandya to consider and participate in these two tournaments, No, I considering don't think so. he is match I fit? I don't think so, Jeevan, because Hardik Pandya is like he have been he's bowling some good overs and then becoming like he have some kind of Injury issues, prone. right? Injury Yeah. prone. Hmm. So we cannot completely trust Hardik Pandya for longer formats, particularly in this situation. Like Maybe, if maybe, he gets injured in the for day one only, we are 10 players. yeah. Yeah, Like that so you are we saying. just have to look after another player who can bowl. Hmm. If suppose Hardik Pandya got injured, or if suppose Hardik Pandya not able to make up to the mark, so Hmm. we need another player who can replace him. Where will we get another player in playing 11 who can replace proper batting or bowling all Then rounder? then we have to ask him to get concussion Yeah. to get replacement. Okay, I think So it valid is good point. option to exclude Hardik Pandya in team test team. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Okay, let's take more questions. Aditya is saying, India Rohit and India A Rituraj. Okay, we have discussed this. Sadman is saying a trivia. Guess the player.
He is Asian player. He is retired and old player. His last World Cup was 2015 World Cup. He played IPL only for RCB. Hint: he is particularly famous for one shot. By Dilshan, Dilscoop. बिल्कुल नहीं दिलसान ही है। दिलसान, नहीं दिलसान दिल्ली में भी खेला है यार। वेट वेट वेट, दिलसान तो दिल्ली में भी खेला है। एशियन प्लेयर, बट एशियन तो दिलसान ही है भाई। सदमन भाई थोड़ा कंफ्यूज कर दिया वो। और कौन है एशियन प्लेयर? एशियन 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 भाई, और कुछ हिंट दो। अभी तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। मुझे लग रहा था दिलशान, बट दिलशान दिल्ली में भी खेला है। Firstly, he is an Asian player, हाँ, and he is he is retired and retired. old player. वर्ल्ड कप His 2015। last World Cup 2015. Hmm. I don't think Okay. so. I don't know. I'm Until he sorry. gives more hint, let's Yeah. proceed. Hint: bowling hard is effective or bowling hard. Ask Tavish. I'm not getting your point, brother. What you are asking? Bowling hard is effective or bowling hard? Which is better, नहीं नहीं, going ये with नीतीश basic कुमार or रेड्डी go की with बात हो plan? रही है। I नीतीश think कुमार he's रेड्डी की बात। asking. No, no. I think he's asking like bowling hard is effective or bowling line and length, like hit the deck and Okay, line on length. So I think this is he is he's asking. asking But about length of the deliveries. yeah, yeah. Which is better, going with basic or go with the plan? Obviously, going with the plan is better thing to do. Okay. So we have got the answer. Let me check. Dilshan. Dilsan. दिलसान। Dilsan is the correct. But by he has played But for Delhi. दिल्ली को तो भी खेला है ना? So that trivia is little bit wrong. He has played Yeah. for Delhi Daredevils. क्रिक बस पे दिल्ली दिखाया ही नहीं भाई। हम लोग क्रिक बस से ज्यादा है। क्रिक बस ने मिस कर दिया वो पॉइंट। ओके, सो तविश भाई इज सेइंग स्मार्ट bowling और bowling hard. I His don't question. understand this. Smart bowling in the sense? Smart bowling, I think he depending on the batter changing the plan or bowling hard, like hit the deck. You are hitting the deck, right? Like I think Srishant used to do, or Yeah, yeah, currently yeah. he is doing the hit the deck bowler. That kind he is asking. But तविश भाई अगर आप जुड़ सकते हो तो ज्वाइन कर लो, तो आप बेटर एक्सप्लेन कर पाओगे। ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है So we'll go अभी। for next question. Yeah. So Aditya is saying, can Gill and Jaiswal sledge Australia player how Virat did when he was young? High hope from Nitish Rana for sledging and showing aggression. I don't think so. I don't think so because Jaiswal is a player. If suppose he get enough support, then he could sledge. Hmm. Captain is Rohit Sharma, right? So Rohit Sharma might not encourage sledging on that situation because team is Uh, performing not good at a moment. hmm. But So Gill can. I feel the point he mentioned, no, how Virat did when he was young. So No, I no, don't no think one that will. will No happen. one will do. No one will Because do because Virat Kohli is Virat Kohli. Uh, no, again that time I in IPL there was no like brotherhood, or you can say friendly atmosphere within the foreign players and Indian Yeah, players. yeah, yeah, yeah. Now the scenario is whole different. Like now the तो players क्या are है ना like भाई, brothers from another विराट mother. कोहली पहले हीरो था, वही जैसे जैसे वो बड़ा लेजेंड बन गया, वो बाबा Hmm. जी बन गया। नहीं, अनदर पॉइंट वाज ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उसको एज अ विलन पोर्ट्रे किया, हाँ, और उसका उसका एक इसलिए अलग ही वो चल रहा ज्यादा था वो। गुस्सा दिखा है। हाँ, वो जो एटीट्यूड, दूसरा मैक्सवेल, एटीट्यूड था भाई। अभी मैक्सवेल का आया था ना कि विराट ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो हाँ। वो भाई तो वो उसने तो विराट उसने तो कोहली एक्टिंग जब, किया था ना, विराट का एक्टिंग किया था कि वो हाँ उस वजह से शोल्डर इंजरी का वही। एक्टिंग किया था। तो मेरे को तो लग रहा है कि यार ऐसा अभी दो लोग हैं जो कर सकते हैं, विराट के जैसा तो नहीं, लेकिन हम्म। स्लेज वगैरह थोड़ा कर सकते हैं वो हंसी सिराज मजाक आई में। थिंक सिराज आई थिंक करेगा। सिराज कैन डू एंड हर्षित राणा कैन डू। हाँ, हर्षित राणा कैन डू क्योंकि वो उसका तो पहला वो वाला ना, रहेगा तो। हाँ, लेकिन लेकिन हंसी मजाक में जो कर सकते हैं वो है ऋषभ पंत और सरफराज खान। वो भाई उसको दोनों ऋषभ स्लेजिंग पंत नहीं का क्रिकेट तो बोलते, मस्ती बैंटर। कर सकता भाई। हाँ, दैट इज बैंटर नॉट स्लेजिंग। वो या तो करेगा ही स्लेजिंग इज उसका। डिफरेंट। उसका तो कमेंट्री चालू रहता है बिहाइंड द स्टंप्स। जी।
हाँ तो So I guess सिराज है फिर, और हर्षित राणा भी कर सकता है तो So we have a question, बाकी guys. Ask Tavnish, spin combo for BGT. बताओ भाई, आपका क्या कॉम्बिनेशन है स्पिन का? दीपक भाई बताइए। भाई दीपक भाई। जडेजा और अश्विन में से तो कोई एक को रखना होगा, और ओके। वशिंगटन सुंदर हो सकते हैं। वशिंगटन सुंदर या फिर और जडेजा भी हो सकते हैं, या फिर वशिंगटन सुंदर और नहीं, जडेजा और अश्विन। लेकिन थोड़ा ओके। सा डाउट लग रहा है अश्विन को, वहां पे समझ नहीं आ रहा है कैसे खिलाएंगे ये लोग, क्योंकि लगातार देखा जाए तो विदेश में तो खिलाते नहीं अश्विन को, तो यहाँ पे डाउट लग रहा है कि अश्विन वहां पे कितने मैच खेलेंगे, ये देखने वाली बातें होंगी। अश्विन का एक इनिंग्स याद दिला दूं, लास्ट बीजीटी में उन्होंने वो और सिडनी सिडनी टेस्ट, क्या क्रिकेट नाम है, वाला। हाँ, सिडनी हनुमा टेस्ट, विहारी। हनुमा विहारी। हनुमा विहारी और अश्विन हनुमा दोनों ने विहारी या। मिलकर ड्रॉ कराया था। हाँ तो वो ये इनिंग्स याद रखना। तविश वो भाई सही जुटे है, लेकिन अगेन, कैसे हैं, खाना पीना हो गया? बिल्कुल, मैं तो अपना ऑफिस का काम कर रहा था कुछ उस समय, तो आई एम रियली सॉरी फॉर कि मैं बीच में छोड़ के आया। पर नहीं मेरा जो नहीं। सवाल था ना वो ये था कि स्मार्ट बोलिंग ज्यादा बेटर है या फिर वो जो हार्डवर्क वाली बोलिंग ज्यादा बेटर है? क्योंकि कई बार क्या होता नहीं, है ना कि जब स्मार्ट बॉलिंग आपके पास मेरे नज़र में स्मार्ट बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। नहीं, पर स्मार्ट बोलिंग भी आप तब करते हैं ना जब आपके ऊपर प्रेशर बनता है। हार्ड वर्क वाली बॉलिंग तब करते हैं जब आपका प्लान एकदम बेसिक क्लियर रहता है, कि जब आप वो स्टार्टिंग में रहे, जब स्टार्टिंग ऑफ द गेम होता है कि लेट्स स्टिक विद द बेसिक, देन उसके बाद अगर वो बेसिक से कुछ काम नहीं बना तो देन अपन उसके बाद प्लान करेंगे। तो इंडिया के इसके साथ जाएगा या फिर इंडिया स्टार्टिंग से अटैक करने को दिखेगा? क्योंकि तो ओवर अटैकिंग कैन इंटेंट भी आई ना अ, कई बार ज्यादा डेंजरस पड़ जाता है। कैन आई आंसर तविश भाई? अरे श्योर है। Yeah. So firstly, bowling hard, which means executing proper plan for bowlers, or else bowlers can go with plan. If their plan won't work, then only smart bowling will come, right? So until bowlers plan will execute, there is no option to include smart bowling. आपको समझ आया है ना मैं क्या बोला हूँ? कि अगर हाँ, जसप्रीत समझ बुमराह या मोहम्मद सिराज और थर्ड पेसर हर्षित राणा जो कोई भी हो, इनका जो पेस वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो तब फोर्थ फोर्थ पेसर को इंक्लूड करेंगे, जस्ट लाइक नीतीश कुमार रेड्डी का। इवन ओके। if your plan is not, you know uh, get by opponent, then only it can work. अगर अगर अपोनेंट आपका प्लान को समझ गया, देन दैट कुड बी बिग हेडेज फॉर द टीम। यू गेट इट मैं राइट? मैं इसका सिंपल सिंपल सा एब्सोल्युटली। आंसर दूं, सिंपल सा आंसर दूं आपका, एक ही लाइन में दे दूंगा, खत्म। या सिंपल आंसर ये है, जिसमें विकेट मिल रही है वही प्लान चलेगा। नहीं, इसमें मैं आपकी बात से सहमत नहीं करता कि कई बार क्या होता है ना कि आप बॉलिंग भले ही अच्छी कर लेते हो, पर विकेट उस टाइम पे आपको मिलता नहीं है। जैसे बट मतलब मैं वो बात हाँ याद बट दिलाना नहीं चाहूंगा यार। नहीं नहीं, बट अगर आप आपके हिसाब से वो आपने जो काउंटर किया ना कि विकेट नहीं मिल रहा है, बट आपको दिख जाता है राइट, पिच से आपको मदद हो रहा है या फिर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उस प्लान को चेंज क्यों करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका प्लान काम नहीं नहीं कर रहा है पर तभी आप स्विच करते हो, राइट? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात और मैं पूरी तरह एग्री भी करता हूँ। पर जैसे हमने 2023 के अंदर देखा, जब सब कुछ करने के बाद भी आपने वो विकेट नहीं निकल पा रहा था ट्रेविस हेड और लबुशेन का। फिर वो सारे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे इंडियन टीम बिल्कुल ही सारा जो प्लान था सब बैकफायर कर गया। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं वो एक तो ऐसा खिलाड़ी जो हाँ, समझ गया आप किस तरफ जा रहे हो, समझ गया। तो उसका अगर दो आंसर है मेरे पास, पहले फनी वाला दे देते हम, ठीक है। पहला फनी वाला ये है कि उस टाइम पे ऋषभ पंत ने नी इंजरी का एक्टिंग क्यों नहीं किया, जो अभी 2024 वर्ल्ड कप में किया। उसलिए नहीं हो पाया। दूसरा ऑन अ सीरियस नोट ये होता है कि आई थिंक लाइव में किसी पोर्शन में, इसी लाइव में किसी पोर्शन में मैंने कहा था कि हमारे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे पास प्लान नहीं है। आप जैसे बोल रहे हो ना कि you are looking like out of plan, you don't have any strategy or any for example, when you are going against a big team in a big final, then you need to have a plan A, plan B, plan C, and like you said, if nothing is working, then instinct
what is that word here? मतलब immediately on the Instinct. moment, on the spot, you create some plan, you strategy, make some strategy, ask other players, or take a break, go outside from the coaching staff, you get a their point of view and do something. So that is where we are lacking. वहां पे हम लोग मतलब सरेंडर कर देते हैं कंप्लीटली कि फ्लो में जो होगा होगा, देखा जाएगा, हमसे तो अब नहीं हो रहा है. द सेम थिंग ऑस्ट्रेलियन टीम या फिर इंग्लैंड टीम, ये लोग नहीं करते हैं, हमारी टीम ही करती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है. और सेम थिंग ये वुमेन्स क्रिकेट में भी होता है, जहां पे हम लोग मेजर नॉकआउट मैचेस अभी जीत नहीं पा रहे हैं इसी रीजन की वजह से. अगर दीपक भाई, इमाम भाई, आप लोगों का कोई पॉइंट है इसके ऊपर डिफर करते हुए, आपका कुछ अच्छा, एक्स्ट्रा ऐड? एक और ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है यार, कि मतलब बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों से, नहीं तो मेरे ऊपर ऐसे सवालों की छड़ी जा रहे थे ये लोग. तो बोलिए बोलिए. सवाल एक्चुअली मेरा यही है कि यार, अ, अपन बीजीटी खेलने जा रहे हैं, और जैसा उन्होंने बोला कि फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन आपका, और हम्म, जिसका पेस अगर 130 के अराउंड हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या है कि मतलब एक बॉलर 140 प्लस डाल रहा है, दूसरा बॉलर 130 डाल रहा है, तो कई बार क्या होता है बैटर को भी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस एडजस्टमेंट के चक्कर में क्या विकेट मिलने की पूरी पूरी चांसेस होती है. तो क्या वो एक प्लान रहेगा नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का? और अगर खिलाएंगे तो फिर कौन सी पोजीशन पे खिलाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में. इमाम भाई, यू विल टेक दिट. Yeah, yeah, yeah. So चलो. 140s and 130s are really matters in Australian series. Firstly, क्यों है ना, अगर एक बॉलर 140 प्लस बॉल कर रहे हैं, बैटर को पता चल जाएगा, ये स्पीड जो इसका बारे में पता चल जाएगा. क्यों है ना, ये जो हर एक बॉल कोई भी बॉलर हो वो बॉल कर सकते हैं, इन स्विंग या आउट स्विंग. अगर बॉल पिच होने के बाद भी बहुत स्विंग हो रहा है तो स्पीड डिसाइड करता है बॉल एक्यूरेसी का. हम्म, So we have to accept one thing, that Nitish Kumar Reddy has every chance to play in playing 11, because he could be the one who can finish the games. Firstly, just like tailenders are not performing for Team India, so he could be the one to hold their wicket. And one more thing, अगर ये बैटर्स जो कोई भी अपोनेंट्स 140 या 130 का, इनको विकेट मिलने का मौका मिलेगा क्या बोल के पूछा अभी आपने. There is a chance. हाँ. Agar till now, batters are not able to attack and they are not trying to, hit the drive length deliveries. So जब तक डिफेंसिव मोड में था तभी विकेट नहीं मिलेगा इनको. When batters are hungry for runs, then only they'll try to hit the bad balls. In that bad balls, bowlers needs just one good ball, which is into their plan only. So okay. your view, bhai. I think I have covered every point which you asked. What I feel is वेरिएशन होना जरूरी है. स्पीड का Yeah. तो आई थिंक इमाम भाई इज ऑन पॉइंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स like Hazelwood, Pat Cummins, Mitchell Stark. So they have a different variation, different bowling angle, and they bring in different aspect, right? So which troubles the batters and And speed. Yes. one more fact is Pat Cummins is not 150 bowler or Hmm. else 150, 145 plus bowler, but he took wicket. He took Right. wicket of the player who can stand for the team by offering, some good lengths or some good pace. अगर कोई भी प्लेयर हो ये कवर ड्राइव खेलने को बहुत he have obsession of playing cover drive just like Virat Kohli, he'll bowl that length and get him out on that deliveries only. Right. Okay, let's take questions. We have so many questions pending. दीपक भाई, आप बताइए. ये क्वेश्चन आया है उज्जवल भाई से. ग्रेम स्मिथ और विराट कोहली बेटर टेस्ट कैप्टन? विराट कोहली, नो डाउट भाई, कभी भी विराट कोहली रहेंगे मेरे. ओके. तबिश भाई? See, इसमें मैं नो कमेंट्स करूंगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली विराट कोहली दिल तो इंडिया है, वो तो बोलेगा ही, बट ग्रेम स्मिथ ने जिस तरीके से कप्तानी की है ना, मीन उनका कंट्रीब्यूशन भी आप उनके खुद के मुल्क के लिए आप नहीं छोड़ सकते, तो बेटर टू स्टे साइलेंट फ्रॉम मी.
तो बहुत गालियां पड़ती है कई बार। अच्छा दीपक दीपक भाई आप कुछ बोल रहे थे, मैंने सॉरी टू कट यू आउट। आप बताइए, कुछ पॉइंट बोल रहे थे विराट कोहली के बारे में, क्यों आप उनको रेट कर रहे हैं हाईली? नहीं वैसे देखिए, मैं तो ग्रीम स्मिथ का कप्तानी देखा नहीं है और उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। और हम्म। विराट कोहली का जहाँ तक देखे कि वो टीम को जो है लीड करते थे, खुद भी मतलब कि करते थे, और साथ में जब भी मुसीबत आती थी टीम पे तो वो भाई अकेले खड़े रहते थे। और हम्म। वो किसी भी सिचुएशन में हार ना मानने की एक ऐसा प्रेरणा देते थे जिससे कि आप हमारी टीम थी, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ा सा वो जगह से शायद हट गई है। तो वो भाई थी कि किसी भी सिचुएशन में हमारी टीम लड़ना जानती थी और वहां से चाहती थी कि नहीं लड़ना है और मैच जीतना है, या फिर ड्रॉ ड्रॉ का तो खैर सोचते नहीं थे लेकिन मैच जीतने के लिए। तो वो हम्म। चीज विराट ने कंटिन्यू करना हमें सिखाया। और इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर जगह पे उन्होंने कामयाबी दिलवाई है। हालांकि कुछ जगह पे हम लोगों ने सीरीज नहीं जीता लेकिन जीतने के मतलब के मूड में थे। अब देखो तो इंग्लैंड में हमने विराट कोहली की कप्तानी में बहुत ही शानदार खेला था। जो वहां पे हमने 4 मैच हुआ था, तो वहां पे शायद 2 मैच और एक ऐसे चल रहा था ना, एक मैच ड्रॉ हुआ था, 2 मैच हम लोगों ने दो जीता एक से था। हम लोग उस टाइम पे आगे थे कोविड ब्रेक से पहले। हाँ वो उसके ब्रेक बाद हुआ, जाके वो उसके बाद हम इंग्लैंड जीत गया वो और जब वो सीरीज ड्रॉ हो गया। ड्रॉ हो गया था, नहीं तो वहां पे भी हम लोग पोजीशन में थे कि सीरीज जीत जाते हैं। क्योंकि भाई हम्म। पांचवे, अगर उसी समय पांचवा मैच भी हो जाता तो हम लोग हाँ हाँ, जीतने ही उस वाले समय थे। मतलब हम लोग जीतने ही वाले थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि विराट कोहली जो एज ए लीडर वो हर जगह डोमिनेट किए, और टीम को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में लाया। आप देखो तो उससे पहले जो हमारे कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, तो उनके कप्तानी में 4-0 से हारे थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों जगह पे। तो हम्म। ऐसे टीम को आप वहां से एक ऐसा टीम बनाना जो कि हर एक जगह पे, दुनिया के हर एक कोने में जाकर और वहां पे डोमिनेट करना जो सिखाया वो भाई विराट कोहली। टेस्ट में अभी भी मानता हूँ कि अगर, खैर अब वो तो हो नहीं सकता, विराट कोहली अभी कभी भी किसी भी फॉर्मेट में कप्तानी लेंगे नहीं, लेकिन हम्म। मैं चाहता था भाई, मैं सच में अगर T20 और वनडे छोड़े थे कप्तानी तो मैं ज्यादा दुखी नहीं था। लेकिन जिस दिन पता चला कि टेस्ट में भी इन्होंने कप्तानी छोड़ दी, उस दिन भाई सबसे ज्यादा मैं ना मतलब कि उनके इस चीज से दुखी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट अब खत्म हो गया, जो कि मैं हम्म। सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ टेस्ट क्रिकेट को। अगर देखें तो T20 और वनडे से ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ टेस्ट को। तो वो चीज देखकर मेरे को बहुत रोना आया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना था तो हो गया था। तो इस वजह से, अब बाकी ग्रीम स्मिथ का आप सॉरी मैं बात करें तो फिर ग्रीम स्मिथ वगैरह का मैं ज्यादा देखा नहीं था कि कैसा वो कैप्टेंसी करते थे और उनका गेम प्ले क्या था। हाँ तविश भाई कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि यार अभी मैंने है ना मन में बड़ा एक अजीब सी खिचड़ी जुगी है कि यार क्यों ना मतलब रोहित शर्मा बोले विराट कोहली को कि आप कप्तानी करो जी, मैं तो प्लेयर खेलना चाहूंगा जी। भाई वही रोहित बोल देगा आप लेकिन विराट मार्वल नहीं करेगा। और मार्वल का आप देखते हो क्या, मल्टीवर्स का कुछ? वो उसमें हो सकता नहीं है, नहीं इसमें अभी के इसमें तो नहीं होगा कुछ नहीं, ऐसा। क्योंकि क्या है ना कि सी विराट कोहली की अग्रेशन अग्रेशन इज जी अनमैचेबल, इसमें अग्रेशन। कोई डाउट नहीं है एज कैप्टन के तौर पे। साथ हम्म। में गौतम गंभीर की जो एक आग है, वो चिंगारी है, वो लग जाए तो वो डेफिनेटली वो इंडिया को बहुत फायदा पहुंचाएगी। हालांकि see, रोहित शर्मा बड़े शांत कप्तान है, मतलब वैसे शांत नहीं है, बट वो वैसे हल्ला गुल्ला करने में ज्यादा पसंद नहीं करते। तो हम्म। जी और गौतम गंभीर थोड़े से क्या अग्रेसिव है, थोड़े से एक्सप्रेशन लेस है पर्सन। तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है यहाँ पे देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा अब तक मेरे को ऐसा लगा है। जब से ये brother, जब से इनका गौतम गंभीर की कोचिंग मैनुअल शुरू हुई है, सी अगर सूर्या के अगर साथ बहुत भाई अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। एक सेकंड में रोकना चाहूंगा आपको, आपका ये इस पॉइंट पे ना मेरा क्रॉस क्वेश्चन ये है कि अगर ये 2 टेस्ट अगर हम लोग जीत जाते न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, फिर भी क्या आप यही पॉइंट एग्री करते, मतलब अभी जो बोल रहे हो कि मिसमैच लग रहा है विराट कोहली सॉरी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का कोच कैप्टन वाला? नहीं, मैंने हार की वजह से बिल्कुल भी नहीं कहा, लेट बी क्लियर इन ओके। कि बट जिस तरीके पे दोनों का नेचर है ना, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं हार और ओके। जीत को लेके तो सवाल उठाता भी नहीं कि ऑब्वियसली गेम है कि फिर
फिर कई ठीक बार है। आप हारते, कई बार आप जीतते। ओके। बिकॉज एज ए कमेंटेटर मेरे को पता है ना कि कहना बहुत आसान होता है, पर जब वो 11 खिलाड़ी उतरते हैं मैदान के अंदर, और जो 15 जो जो आपका सपोर्ट स्टाफ भी होता है, वो जो टीम होती है, वो भी बहुत गेम को क्लोजली देखते हैं, वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं वो चीजें। तो जहां तक मेरा जो एक पॉइंट था ना कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर, मुझे लगा कि शायद जो गेंदबाज है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर पहली इनिंग में बल्लेबाजों को मार पड़ रही है, जैसे बल्लेबाज जो है वो पहली इनिंग के अंदर हमारे बल्लेबाज वो मार रहे हैं, तो दूसरी इनिंग में हमारे जो गेंदबाज है ना, वो सीखेंगे कि भैया स्लोअर वन वगैरह किस तरीके से डालनी है, वो किस लाइन पे डालना है। तो वो अभी तक वो चीजें बैठी नहीं है, तो वो चीजें जो है ना वो मिसिंग लग रही है भारतीय टीम के कैंप से। जो मुझे तो ओके। लगता है कि क्योंकि हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो जब पहली टीम जब बॉलिंग कर रही होती थी, तो हम लोग बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते थे उस चीज को कि कहाँ पे वो हिट कर रही है, कहाँ पे वो बॉलिंग कर रही है, किस एरिया पे डाल रहा है, क्या वो वेरिएशन डाल रहा है, और अगर जब वेरिएशन नहीं डाल रहा है तो क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी इनिंग के अंदर प्लान करते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो पर्टिकुलरली इंडियन टीम के अंदर मिसिंग हो रही है, क्योंकि रिमेम्बर जैक हमेशा ये काम करा करते थे जब जैक होते थे या फिर और भी कोई खिलाड़ी होते राइट। सीनियर प्लेयर्स का आई थिंक नजरिया वही होता है और उनका रोल भी यही होता है कि आप ओपोनेंट्स की गलतियों से सीखो और वो लोग क्या सही कर रहे हैं उससे सीखो, दोनों चीजों से आपको सीखना चाहिए। और दो इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, मैं उनको हाईलाइट करना चाहूंगा। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ग्रेम स्मिथ और विराट कोहली बेटर टेस्ट कैप्टन का क्वेश्चन का दो आंसर है। एक सलमान भाई ने लिखा है, कैप्टन ग्रेम स्मिथ टुक साउथ अफ्रीका इन टेस्ट टू अनदर लेवल सेम एज विराट कोहली इन इंडिया। और दूसरा पॉइंट ये था उज्जवल भाई का कि दीपक भाई को बता दो स्मिथ की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका 3 आउट ऑफ 3 सीरीज विंस इन इंग्लैंड, 3 आउट ऑफ 4 विंस इन ऑस्ट्रेलिया, नेवर लॉस्ट इन न्यूजीलैंड इंडिया, विराट नेवर वन इन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। ठीक है भाई, कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं था। तो जी भाई ठीक जी। है। थे। इसीलिए मैंने बोला ना कि बेटर टू नॉट कमेंट आउट देयर। इसलिए मैं No, no, सेम no. गेम खेल ही It आया। is no. We should have to मैंने because इसीलिए तो बोला। they are asking in the sense. So they would expect to answer firstly. आंसर या Yeah. दैट्स व्हाट आई एम In सेइंग बट yeah. So as the question is about the best test team, I mean test captain in between Virat Kohli and Graham Smith, right? So it is like you can say Virat Kohli. I have seen Virat Kohli, so he could be the best one to be. So yeah, as it Deepak Bhai depends on just now said, individual, right? Individual yeah. opinion. So you just have to pass the comment. So if someone asks me like that, I have two answers particularly. Hmm. Graham Smith has some kind of good team when it Hmm. comes to batting, bowling, or any kind of thing. So as you can see, the team which captained by Graham Smith, there are a lot more big names. Dale Steyn, Hashim Amla, Philander, Dale Morley Steyn, Morkel. Nylander, So these three will go out in team. Just Jack like Scalise. warriors, they'll go after team. Hmm. As you can see, Dale Steyn is how dangerous bowler he could be. Maybe some lockdown kids or IPL fans, he don't Hmm. know. He don't know about. I mean, a lot of people don't know about Dale Steyn. But Hmm. Dale Steyn is the one who shows the, you know, the some How bowlers can dominate fireballs. the batters. Yeah, some fireballs to any batter in the world. Philander is like भाई Philander. He ये is चीज like मैं मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका की जो टीम है उस समय जो टीम थी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। तो yeah. कप्तानी तो So मैं नहीं देखा था ग्रीम स्मिथ का, बट मैं टीम के बारे में जानता हूँ कि डिविलियर जो उस समय लगातार नंबर वन बॉलर रह रहे थे, बैटर रह रहे थे, और डेल स्टेन लगातार नंबर वन बॉलर रह रहे थे। और साथ ही हाशिम अमला और भी उनके कुछ प्लेयर थे। हर्षल गिब्स खुद बेहतरीन प्लेयर रहे हैं। और उन्हीं में शायद एक कोई और Jack जेपी Scalise, डुमिन, जैक स्कालिस, भाई उनकी बात ही मत करो यार। लगता है सचिन legend तेंदुलकर है और भाई। सचिन तेंदुलकर और जहीर खान का जो आंकड़ा है टेस्ट में, वो दोनों के Hmm. बराबर लगभग लगता है कि उनका रिकॉर्ड ये मतलब टीम तो विकेट और टीम रन तो में। बहुत अच्छा है। ग्रेम स्मिथ का कैप्टेंसी तो बहुत अच्छा है भाई। एज आदित्य भाई said, they have हम्म, won 3 out of 3 in England, 3 out of 4 in Australia or
no, never lost in New Zealand or India. और वो जो We can टूटे say हाथ that. से उन्होंने बैटिंग किया था, शायद Yeah, we एक can ड्रॉ say मैच that था because टूटे हाथ से। because if you have a bowlers like Philander, Stein, Morkel, any captain can win. Mm. Just because of breaking the myth, Graham Smith have become greatest captain of South Africa. Just like wherever they go, they just won. They just dominated every each and every opponent in test format. But in when it comes to Virat Kohli perspective, Virat Kohli don't have proper team who can perform or who can go after the team. Because when it comes to opening batters, Murli Vijay used to bat. Mm. Murli Yeah. Vijay is a good player. We can surely say that. But we don't have proper non-striker or proper second opener for the team. Firstly, so for the team who don't have proper opener, it is tough to score big runs. विराट Yeah. कोहली कैप्टनसी दैट में इज जो रन कोई भी हो, मेजॉरिटी ऑफ द रन्स केम फ्रॉम मिडिल ऑर्डर बैटर्स ओनली. मिडिल And the ऑर्डर आपके पास major factor स्पिन why बॉलर Virat is highly treated as a batter captain in Test cricket ही इज कंप्लीटली mostly. बॉलर कैप्टन ब्रदर. हाँ, विराट because कोहली इज लाइक like इमाम भाई is saying no, विराट कोहली के पास बना बनाया टीम नहीं था, जिस जिस तरह से ग्रेम स्मिथ के पास था. विराट कोहली ने स्क्रैच से टीम बनाया, एक या फ्रॉम जीरो वी फास्ट हैव स्टार्टेड. फास्ट फास्ट बॉलिंग का कल्चर टीम के अंदर लाया, क्योंकि साउथ अफ्रीका यू ऑलरेडी यू नो लाइक उनका पेस अटैक है, कल्चर है, तो वो उस तरीके का बॉलिंग अटैक के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए इजी है. विराट कोहली के लिए ट्रांजिशन करना पड़ रहा था, क्योंकि एम एस धोनी के बाद से उनको मिला कैप्टेंसी, और एम एस धोनी ने और एब्रप्टली छोड़ा एक था वो. बात और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका के लिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो देश है वहाँ पे डोमिनेट करना ज्यादा आसान है जो हम एशियन एशियन कंडीशन कंपेयर टू एशियन कंडीशन, या के, क्योंकि हमारे देखे तो जो हमारे बैटर्स होते हैं खास करके वो सेना कंट्री में खेल ही नहीं पाते थे. उन लोग के जो बैटर बॉलर्स थे उनको झेल ही नहीं पाते थे. अब देखो तो हमारा ओपनिंग मतलब कि ऐसा रहता था कि हमेशा हम लोग जूझते रहते थे. ऐसा इसीलिए हुआ और यही वजह था कि 4-0 से दोनों जगह हम लोग लगातार हारे थे धोनी कैप्टनसी में, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो. और वहां पे ओके एक तो ओके. हमारे पास भाई भाई जी थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिबेटेबल क्वेश्चन उन्होंने भाई, भेजा है, मतलब मैं सभी लोग से तो मजा आएगा. विदा लेता हूँ ठीक है, क्योंकि बाय अब बाय. रात. ओके बाय. ओके ओके. बाय सभी लोग. बाय बाय. या ओके दीपक भाई. सो इमाम भाई और तबिश भाई, यहाँ पे उज्जवल भाई बोल रहे हैं कि विराट ऑल्सो गॉट बिग नेम्स लाइक एस जडेजा, पुजारा, बूम, शामी, रोहित. इट्स नॉट दैट स्मिथ ओनली गॉट प्रिविलेज्ड ऑफ ग्रेट प्लेयर्स, ऑल्सो ही ग्रूम्ड एबीडी, आमला, मॉर्केल, फिलैंडर एंड फाफ. Yeah, I got it, Ujjwal bhai. Firstly, when Virat was the captain of Team Indian Test team, these are not big names. And Ash Jadeja are upcoming all-rounders for Test cricket. And when it comes to Pujara, he's also upcoming player just like Rohit is not performing in Test cricket. So Virat Kohli gave a chances to particular players and he groomed them. But I'm not saying about batters. I'm saying about bowlers. Bowlers, yeah. When Team India used to tour foreign countries, just like Sena countries, South Africa, England, and New Zealand and Australia, all these four countries, Indian fans might think like, एक भी जीत नहीं सकते क्या? This Hmm. was the mentality of Indian fans when Virat Kohli was Not not the not captain. series. He is talking about the Yeah, match. एक मैच yeah, नहीं जीत सकते क्या? yeah. That was the So scenario. can we win at least one match and can we dominate particular series? Hmm. So Virat Kohli just broke that myth. And Virat Kohli groom every single bowler which he have, whom he can play under. Hmm. Virat Kohli don't have proper bowlers also. He just have Umesh Yadav, Varun Aron, Ishan Sharma Ishan Sharma. and Chemi. So these were the bowlers when Virat Kohli was take over the captaincy of Test. So we cannot compare that seriously because South Africa has talented players and groomed players. And yeah, there is one more I think comment. we have got perfect answer. I think this will sum up the debate. Like there is no common standard in terms of captain. We can compare them on approach, but can't compare captain on basis of the team. And the I think the era, the
conditions where ऑल्सो डिफरेंट है they ना are. यार। Hmm. उस टाइम पे मतलब बॉलिंग ज्यादा डोमिनेट हुआ करती थी। अब इतने फ्लैट ट्रैक हो गई कि गेंदबाजी जो है वो सरेंडर हो गई एक तरीके से। और तो वो आई क्या थिंक है ना जेम्स भाई, स्मिथ के टाइम काफी पे लेजेंड डिफरेंट है। डीआरएस भी नहीं था, लेजेंड्स को राइट? कैप्टन करना बहुत आसान चीज है। हम्म। अपकमिंग प्लेयर्स को कैप्टन करना बहुत मुश्किल चीज है, हम्म। क्योंकि अपकमिंग प्लेयर्स को प्लान भी प्रॉपर से नहीं दिया जाएगा। लेजेंड्स को पता है, एक्सपीरियंस है उनके पास। ओके, पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा है, वी शुड हैव टू टेक विकेट। ओके, विच विकेट वी शुड हैव टू टेक, ऑन विच बॉलर वी हैव टू गो। So all these points should have to be covered by experienced team and experienced captain. When it comes to Indian cricket team, Virat Kohli is not experienced captain, and he is not have experienced team just like Graeme Smith has. And I can say both are legendary captain, but when it comes to comparison, Virat Kohli is greatest captain in terms of everything. तविश भाई, शायद आपको नींद आ रही है, बट आपका सवाल का आदित्य भाई ने एक आंसर दिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताइए आपको हाँ क्या लग मैंने रहा है। देखा वो Smart स्मार्ट। bowling means try to get out at sleep, getting LBW or bold, and hard bowling means bouncer डाला और injured कर देगा, बात खत्म, right or wrong? रॉन्ग है बताइए। यार ये। हार्ड बॉलिंग मतलब हार्ड वर्क वाली बॉलिंग बोल रहा हूँ मैं कब से। हार्ड वर्क बॉलिंग मतलब एक पर्टिकुलर लाइन लेंथ पटक के वो बेसिक जिसको बोलते हैं ना स्पॉट बॉलिंग जिसको बोलते हैं कि आप एक हम्म। ही स्पॉट पे आप बॉल डालते जाओ और वो विकेट आपको मिलता जाएगा। मतलब आप एक तरीके से बोल रहे हो, मतलब मैकग्राथ मैकग्राथ जिस तरीके से बॉलिंग करते थे, वो टप्पा नहीं छोड़ते थे। एब्सोल्युटली। क्योंकि सी कई बार ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर पेशेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको हर एक बॉल पे विकेट मिलेगी, नहीं। अगर हम्म। आपने बिल्कुल वो बेसिक लाइन और लेंथ पकड़ रखा है वो चौथे स्टंप पे टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, तो वो जो है ना वो बेसिकली बहुत अच्छा रहेगा। और ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे वो लाइन अच्छा रहता है जो बैगरात ने करके दिखाया। तो मैं उसकी बात कर रहा था कि यार अपने पास वो प्लेयर्स है। आकाशदीप एक बहुत बेहतरीन प्लेयर निकल के आया है। एंड देखना हम्म। एक बार आकाशदीप जो है वो ट्रेविस हेड को बहुत तंग करने वाला है, क्योंकि अराउंड द विकेट वो उस एरिया से बॉल बॉल कराएगा जहाँ पे वो खेलने पे मजबूर होएगा। और जहाँ तक देखा है ना कि आकाशदीप का अगर आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, उनका बॉल आखिरी में जाके ना हल्का सा मूव होता है, बाहर की तरफ निकलता है लेफ्ट हैंडर से। Okay. Let's take one more question. Aditya bhai is saying your take for KL Rahul, will he play or not? If yes, not in form, and if not, performance question will be asked on captaincy, and if not, but in case Rohit Virat injured, only a senior player remains. भाई इतने सारे इफ यस नॉट लगा दिया है ना, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि पहले एक करके ब्रेक करते हैं। योर टेक, केएल राहुल प्ले खेलेंगे नहीं खेलेंगे प्लेइंग 11 में, ये पहले खेलना बताइए। चाहिए। इमाम भाई, आपने भी आई थिंक Yeah, पहले भी कहा था कि केएल राहुल he खेलना should चाहिए। have to. He should have to be in the squad. ओके। I mean, in the playing 11. I'm sorry, हम्म। because he has good numbers and he can play very well in Sena countries. So अगर थोड़ा मौका मिल गया तो मतलब थोड़ा पेशेंस से खेलने से बहुत अच्छा प्लेयर हो जाएगा ये। ओके। और आई थिंक दूसरा पार्ट में थोड़ा बहुत जो समझ पा रहा हूँ ये है कि अगर विराट और रोहित इंजर्ड हो जाते हैं, नहीं खेलते हैं, तो एज ए सीनियर प्लेयर क्या कैप्टेंसी के लिए राहुल को दिया जाएगा? बट आई थिंक नहीं इसका तो रहेगी। जवाब हमने दे चुके हैं, बुमराह ही होगा कैप्टन, लाइक बुमराह will वाइस be the कैप्टन। captain. सो आई थिंक या द होपफुली वी हैव आंसर्ड आदित्य भाई। अगर गलत कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिया है तो एक्सप्लेन करना फिर से। ओके, लेट्स टेक अच्छा, वन मोर। एक सवाल ये है कि यार मतलब या केएल राहुल एज ओपनर, अगर क्योंकि रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। आई डोंट नो हम्म। कितनी सच्चाई है उसके अंदर। तो दो नहीं, एक एक पहला दो टेस्ट। नहीं, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट टेस्ट। हाँ मतलब तो पहले टेस्ट मैच में नहीं रहेंगे तो क्या केएल राहुल को क्या मौका मिलेगा पहले टेस्ट मैच में खेलने का, मतलब ओपनर के नहीं तौर भाई, पे? और अगर ओपनिंग के परफॉर्मेंस जैसा तो कर नहीं जाते हैं। खेलेगा। ओपनिंग के जगह पे नहीं खेलेगा क्योंकि वी हैव बैकअप ओपनर जस्ट लाइक शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क आउट अगर अगर रोहित शर्मा अभिमन्यु, नहीं खेलेंगे तो। और अगर अभिमन्यु गिल यशस्वी को मौका ओपन नहीं करते हैं तो मिलेगा। नंबर 3 पे कौन है? नंबर 3 पे तो हमारे पास ऑप्शंस है ना। विराट कोहली विल प्ले और एल्स विल गो विथ सरफराज खान। सो केएल राहुल को तो वो जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं उसको जो उसका स्पॉट
हम दे चुके हैं ऐसा स्टेटमेंट तो रोहित भाई से भी आ गया. वी जस्ट वांटेड टू बैक राहुल एट मिडल ऑर्डर ओनली. Hmm. प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया ना. कि Okay. राहुल को ना, मतलब मैं कहूंगा कि यार एक बार टाइम मशीन में जाओ, वो दो या फिर अपना खुद का वीडियोस देखो आप 2014 से 2018 19 तक कैसे खेलते हुए। बिकॉज क्या होता है ना कि कोविड के बाद से बहुत लोगों का डिप आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वी Okay. शुड एक्सेप्ट इट कि कोविड Okay. में One more. एक तो सॉरी तविश भाई, मैं काट रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, तो ले रहा हूँ कमेंट थोड़े. उज्जवल भाई इज सेइंग यू रिमेंबर बीजीटी ऑफ 2013. Ash, Jaddu, Pujara, Sami were heroes of the victory. They were on prime after 15-21. Yeah, that is what we told you. Huh. Yeah, yeah. So after that, he's saying, "Okay, I accept your opinion humbly. No point of prime time debate." No, Ujjwal bhai, I think you are asking really good questions, and it is. Uh, we are really Firstly, happy to Ujjwal discuss bhai, these points. just because of your questions, Hmm. our stream have become some more quality. Let Yeah, me tell yeah, you yeah. honestly. सो मैं सच बताऊं, मैं आज मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैंने प्लान रखा था. इवन लाइव के स्टार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया था कि 1 आवर ही One करेंगे. hour का. Yeah. या बट इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए ना, कैसे 2 आवर हो गए पता नहीं चल रहा है. बट थैंक्स टू उज्जवल भाई एंड आदित्य भाई, जो भी कमेंट्स में कर रहे हैं रेगुलरली. And Shabman bhai also. सदमान भाई ऑल्सो, या. Yeah. Qadir कादिर Khan. खान, is Virat Kohli greatest ever Test captain of India? Kadir There is bhai, no I doubt. think there is no doubt, and there is no point like discussing again. You can watch this live back with a little bit 30 Firstly, minutes. Yeah, yeah. Qadir bhai, thank you for commenting and thank you for coming live. If you didn't yet subscribe, please click on the subscribe button. And for interesting more debates, you can surely watch our upcoming live sessions also. And this question, no, we have already discussed like in elaborately like 30 to 40 minutes. That's why Yeah. I'm not answering again. But yeah, thanks for asking. You can watch this clip again and do subscribe and ask your further question if you have further points. If you have any particular points to add on this point, uh, let's take another one. Ujjwal bhai is saying, but please answer this on basis of quality. Better number three in test, Pujara or Jonathan Trott? This is tough one. This is tough one actually. Very tough. तवीश भाई, आपके लिए. There is यार perspective ये in बाउंसर both पे मेरे को batters too. खेलना पड़ रहा है। ये ओवर हेड बाउंसर उज्जवल यार, उज्जवल मतलब भाई, ये वो 1 सेकेंड भाई. हाँ, उज्जवल भाई क्या है ना, जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लॉन्ग डिबेट का ही पूछते हैं. हाँ, ये हाँ, छोटे हाँ. मोटे नहीं पूछते छोटे हैं. मोटे वन लाइनर में आप आंसर नहीं दे सकते उज्जवल भाई के Ah, क्वेश्चन. firstly, your cricket knowledge is something else, brother. I या appreciate that. आई थिंक ही ओके। हैज तो लाइक सेट ऑफ क्वेश्चंस. डिप्लोमेटिक Yeah. आंसर देते हैं। ओके. सी जॉनथन ट्रॉट इंग्लैंड के आई थिंक, इफ आई एम नॉट Yeah. रॉन्ग। या और अभी भी शायद से वो अफगानिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं, जी. है ना? क्रिकेट मतलब वर्ल्ड मैं कप ठीक ओडीआई हूँ। वर्ल्ड कप में किया था. हाँ, अभी का मुझे पता नहीं है, अभी का अभी मैं नहीं. नहीं. नहीं मतलब वो अफगानिस्तान टीम होंगे में आई की है थिंक. तो कोचिंग है। तो पुजारा से जॉनथन ट्रॉट जो थे ना, वो थोड़े से इंग्लिश काइंड ऑफ प्लेयर थे जो टिक के खेलना पसंद करते थे। और साथ में जब भी वो मौका मिलते थे ना, वो अंडर द शेल नहीं जाते थे और गेंदबाजों को थकाते थे वो भी। और ये भी अपनी टीम के लिए कर चुके हैं, पुजारा भी बहुत बार कर चुके हैं। बीजीटी के अंदर तो करते ही रहते हैं। वो गेंदबाजों के मन में जब तक आग ना लग जाए ना कि भैया ये 100-200 बॉलें लगातार खेलते रहना, वो टिके रहना, वही तो टेस्ट क्रिकेट की ना एक बहुत बड़ी वो रहती है कि यार यही तो होता है टेस्ट क्रिकेट का रियल पेशेंस। अब जो कि But बैटर but नंबर 3 के सबसे बेहतरीन बैटर है दोनों यार, इसमें कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। और क्या होता है ना see, कि स्टैटिक्स there is अगर आप similar मेरे हिसाब से देखो ना, approach. I mean, both are similar kind of players, but the thing is, approach is different. और Jonathan Trent कंडीशन भी बहुत used to डिफरेंट है। attack the prime bowlers. I mean, the ace bowlers for the team, he used to attack them. But when it comes to Pujara, he just defend the prime bowlers. He just defend ace bowlers.
He just defend and hold his wicket and he'll play patiently. There is a major difference Absolutely. between, yeah, बट अगर आप स्टैटिकली स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो स्टैट्स आपको कभी भी आपको रियल पिक्चर नहीं स्टार्स दिखाते। आपको रियल पिक्चर नहीं देता है, वो तो भाई yeah. वो ट्रूथ है। बेसिकली मैं स्टैट्स का कोई बड़ा फैन भी हूँ भी नहीं, क्योंकि स्टैट्स आपको वो क्वालिटी नजर नहीं आती उस खिलाड़ी की, तो इट्स बेटर नॉट टू गो बियॉन्ड दैट। बट हम्म, अगर आप देखिए कंडीशंस के वाइज, तो पुजारा ने हर कंडीशन में आके रन बनाए। जॉनथन हम्म। Yeah. ट्रॉट, आई डोंट नो, मतलब कमेंट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, बट आई थिंक वो शायद स्पिन के सामने फंसते जब वो इंडिया आते थे। पर जब नो नो, पुजारा इंग्लैंड जाते हैं ट्रॉट तो भी स्कोर किया, वो अच्छा रन्स बनाया, लेकिन क्या है ना, ट्रॉट का अप्रोच डिफरेंट है. ट्रॉट हैज सम बिग नेम्स इन पर्टिकुलर टीम which he plays for, particularly for test cricket. हम्म। उनके इसमें शैडो कोई में डाउट नहीं इनका है, हाँ। नेम बड़ा नहीं हुआ. ये राइट। पर्टिकुलर इंग्लैंड टीम के प्लेयर्स थे, उनका नेम में इनका नेम बड़ा नहीं हुआ. हम्म। वो जो शैडो में चले गए, एलिस्टर कुक, केविन या पीटरसन, आई थिंक स्ट्रॉस इवन कॉलिंगवुड, कैप्टन स्ट्रॉस। and इयान Bell. बेल। So there are a lot more players. So I think, तो yeah, you can't really compare on basis of any Yeah. like दोनों ने there ना is no. अपने देश के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। एक अभी भी खेल रहा है लगातार, रन बनाने की कोशिश कर रहा है, रणजी में दौरे हुए दौरे शतक लगा रहा है हमारा 37 ईयर यंग क्रिकेटर पुजारा। और see, क्योंकि बिकॉज अगर आप 200 बॉलें खेल रहे हैं हर एक इनिंग के अंदर, दैट हम्म। मीन्स आपका जो एक तो पेशेंस लेवल है, और दूसरी चीज आपके पास जो सबसे बेहतरीन है वो आपकी फिटनेस, क्योंकि अच्छा, 200 मेरा बॉलें मेरा खेलना जरूरी। मेरा क्वेश्चन है इसी इसी से रिलेटेड, जोनाथन ट्रॉट से रिलेटेड। मुझे याद नहीं आ रहा कि आई थिंक उन्होंने क्रिकेट से संन्यास इसलिए लिया था कि कुछ उनको मेंटल हेल्थ का इशू था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Not a इसके mental चलते ही उन्होंने issue. संन्यास लिया था, राइट? व्हाई ही मींस ट्रॉट ने मुझे इतना याद है कि उन्होंने एब्रप्टली ले लिया था संन्यास, जोनाथन ट्रॉट ने। No, I think हम्म। uh, he feels some kind of mental pressure, particularly on series. या। So for after that, team went for another player. That's it, and he performed. ओके। I think I got the official news that he has taken announced his retirement from international cricket. क्या बोल रहे हो भाई? Yeah, yeah. Bolo. Okay, so he had announced his retirement from international cricket following the series against West Indies. He struggled his new position as opener. Okay, exact reason क्या था? I don't feel I my game is at the level you need to be at play for England. I think, yeah, I think some kind of fair stress or maybe. retirement. Uh, okay, no, let's not get into that. Let's move ahead. Yeah. सलमान भाई Next इज question. सेइंग कादिर खान मेरे दोस्त हैं स्कूल के डायहार्ड वीके फैन। बढ़िया है Yeah. भाई सलमान भाई, थैंक यू। आप ऐसे ही अपने दोस्तों को लाइए लाइव में, और हम ट्राई करेंगे सबके क्वेश्चन का आंसर दें, और लाइव को और जितना एंगेजिंग और मजेदार बना सकें, रोचक बना सकें। उज्जवल भाई बोल रहे हैं, अच्छा वन लाइनर बता दो आप लोग, बेस्ट एवर ओडीआई मैच यू हैव सीन। माय फेवरेट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2011 सेमीफाइनल। इमाम भाई आप बताइए। My favorite is Australia versus Afghanistan, which happened in 2023. ओके। Maxwell तविश भाई। 200. हाँ हाँ, तविश भाई। मतलब ऐसे बहुत अगर देखा जाए जब से बहुत सारे कमेंट्री होंगे, करना बट शुरू करें। एक चुनिए, बहुत सारे होंगे मैं समझ सकता हूँ। एक ही इधर सिंगल लाइन बता देना चाहिए. हाँ, वन सो लाइनर है। माय फेवरेट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2011 वर्ल्ड कप। फाइनल। या Okay. My favorite would be the Net West series final, because that revenge, no,
that whole match, whole experience is different. And that Which one? time, Which one? Uthappa scored winning runs. That one. no. Mohammad I Kaif think it's Zach. and Yeah. Mohammad Zach Kaif and Zahir Khan. uh, Yeah. Zach who the hit the ball ना मतलब strike उसने Series किया था. decider. they went for overthrow and completed the Double. Yeah, two for runs. double. Yeah. Yeah. That I match think was fire. Zach last किया गांगुली था का उस वो time पे. स्टार्ट शर्ट टी शर्ट उतार के Ah, घुमाना, yeah. दैट इज डिफरेंट ब्रो. वर्ल्ड कप तो है बट बिकॉज उस टाइम पे वो अलग ही था. सो आई विल रेट दैट हायर. वो तो ओके. सलमान mine भाई best सेइंग माइन ODI. बेस्ट ओडीआई मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 Best से. pick, अरे हाँ my बहुत, भाई, best pick. ये कौन भूल सकता है. ये भी जाएगा भाई. एज ए न्यूट्रल फैन ये भी जाएगा भाई. Yeah. या अच्छा, एक न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच भी वर्ल्ड कप 2015 का मैच बहुत शानदार था. जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 150 पे ऑल आउट हो गया था. न्यूजीलैंड भी 145 पे And कुछ 9 विकेट हो गया था. बहुत मैचेस है भाई. अगर बोले तो हम लोग कल सुबह तक डिबेट करना खत्म पड़ेगा. नहीं होगा. हाँ, क्या है रैंकिंग ना, अगर करना बैठे, एक 2015 लाइव का. करते हैं. एक लाइव या करते 10. हैं वैसा. हाँ, कि या रैंक करना करेंगे करना टॉप चाहिए. टॉप ओडीआई मैचेस रैंक 2015 का 2015 का सेमीफाइनल जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट न्यूजीलैंड है ना, वो भी बेस्ट ओडीआई था. लास्ट आई बॉल थिंक 6 मारा था इलियट. अच्छा पॉइंट है. मैं नोट कर लेता हूँ कहीं पे. एक लाइव या करेंगे कि रैंक करेंगे टॉप ओडीआई, टॉप 10 ओडीआई मैचेस, टॉप 10 टी20 मैच, टॉप 10 टेस्ट. टॉप 10 या टेस्ट करेंगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा टेस्ट यार. तो मुश्किल होगा. ओडीआई बहुत और टी20 कर सकते. ओडीआई टी20 कर सकते हैं. हाँ, या क्योंकि नहीं टेस्ट हमने देखो, जो सारे काम मुश्किल देखे होता नहीं है है ना ना. यार, see, नहीं, जो टेस्ट का काम प्रॉब्लम मुश्किल ये है होता कि है ना. हमने, नहीं तबिश भाई, हम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट हमने देखे नहीं है. और आपने ही कहा था स्टार्ट्स देख के या स्कोर कार्ड देख के पूरा नहीं पता चलेगा, राइट? अगर अगर ऑनेस्टली बोले तो 5 दिन का टेस्ट कोई भी नहीं देखेगा. हम्म. So we cannot decide the test cricket in like it is greatest, like we cannot say that. Okay, let's take questions. We have more questions. सलमान भाई asking why Sami is not selected in BGT रिजर्व में तो रख ही सकते थे. भाई फिटनेस वो फुली रिकवर नहीं हो पाए ना, उसी के चलते नहीं रखा है. वो क्लियर है. क्या आपको Okay, लगता है next question क्या है? मतलब जो सिलेक्शन कमेटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा है इस बार, मतलब क्या किस बेसिस पे सिलेक्शन किया, आई डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि भाई ये आपने तो वो अक्षर पटेल को लोग भी कभी लिया था. बताते नहीं ना. प्रोसेस तो वो बताते नहीं है. अगर प्रोसेस बता देंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी हम लोग को. मतलब डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस बेसिस पे ले रहे हैं, रिसेंट फॉर्म क्या है वो बताते ही नहीं है ना. प्रॉब्लम वहीं पे है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमें. ये जो बीसीसीआई का लॉजिक है वो. हाँ, बीसीसीआई का लॉजिक है वो, बस इतना ही है. अब कहीं वो ऐसे डाइस खेलते खेलते तो नहीं करते ना ये लोग, कई टीम का सिलेक्शन कि भाई वो ये नंबर आ गया. वो आपको पीठ पे वो मार के नंबर सिलेक्ट करते थे ना, ये इतना नंबर पे हाँ, तुम्हारा जस्ट बैटिंग लाइक है वो. ऐसा ही चलेगा. हाँ. ऐसा है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ujjwal bhai is saying Trot became a victim of politics in English team after Johnson destroyed them in एसएस. हाँ, एसएस मुझे वो याद है. एसएस के बाद ही उसका स्टार्ट हुआ था. यार एसएस में नॉट ओनली बहुत. नॉट ओनली ट्रॉट नॉट ओनली ट्रॉट पीटरसन को भी बहुत बहुत पॉलिटिक्स हाँ, किया है. बहुत पॉलिटिक्स किया वो. इंग्लैंड का उस टाइम पे पागल हो गए थे वो लोग. या जैसे पाकिस्तान अभी है ना, लिटरली उनका बोर्ड इसी के लिटरली बाद. डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया इन एशेज सीरीज. बेस्ट टेस्ट मैच इन योर ओपिनियन. दीपक भाई ये बड़े लाइव में करेंगे, मतलब टेस्ट का नहीं. दूसरे लाइव में करेंगे. बस वन लाइनर दे दो यार, दे इनको दीपक भाई के वास्ते. वन लाइनर. इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेस वो जो 2019 बेन जिसने मैच. स्टोक्स कोच करेगा वो. बेन स्टोक्स ने जो जिताया था वो बोल रहे हो? वही. हाँ, आई थिंक ओके, और क्लोजेस्ट में आपका तो भाई? वही आ रहा है. मेरा भी वही आ रहा है या, क्लोजेस्ट में, और कुछ. या फिर वो जो एक मेरा तो ऑस्ट्रेलिया गब्बा वर्सेस है वेस्ट भाई. इंडीज का था गब्बा ना. जो ऋषभ पंत जिताया था ना, हम्म. दैट वन विल बी माय नंबर वन टेस्ट मैच. ओके. अच्छा, एक हाँ, वो भी तो हो सकता है यार, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज ने जीता था इतने साल के बाद. या वो भी ये एक बहुत लोग शमारी जबरदस्त जोसेफ टेस्ट ने मैच था यार. जिताया. समर जोसेफ. हाँ. शिमाज जोसेफ ने. या वो भी अच्छा था. अच्छा, मैं आगे लेता हूँ भाई. अगर स्ट्रीम खत्म करना हो तो लीव इट, बट टेस्ट क्रिकेट का ओवररेटेड अंडररेटेड खेलें. उज्जवल भाई आज नहीं यार, ऑलरेडी ऑलरेडी कल सारा सारा कल बज रहा खेलेंगे. है. कल खेलना. कल खेलेंगे. आज
अभी अभी एक 20-30 मिनट्स का लाइव स्ट्रीम हो जाएगा, एंड करेंगे कल कल हाँ, शुरू। करते हैं अभी, आई थिंक कल एंड भाई, करते हैं। कल यार हाँ, ऑफिस भी जाना है यार, हाँ ना, मैं सवेरे आज ऑफिस सवेरे लेट उठ गया के। हूँ यार। कल इन्होंने नहीं, हमको तीन तो घंटे टाइम का पे पहुंचना पड़ता है ना, नहीं तो हाफ डे लग जाता है हमारा तो यार। हाँ, नहीं, हमारे तो हाफ डे लग मजा जाता है, मजा साढ़े आता नौ से है, डेट बट होता है। भाई ऑफिस भी जाना पड़ता है टाइम में, तो थोड़ा समझो। अ, अच्छा, उज्जवल भाई बोल रहे हैं, ओके, गुड नाइट। और उज्जवल थोड़ी सी भाई। नींद नींद भी आ रही है, हल्की हल्की सी। हम्म, चलिए गलत। फिर इसी बात पे ऑलमोस्ट। एंड करते हैं। उससे पहले हमारा वो विवेक राजदान की जुबान में, टूटा है गावा का घमंड। स्पेक्टर दीपक भाई बोले, मेरा टूटा है गावा का घमंड, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गावा 2.0। अच्छा जेठ भाई, आपने हम्म, सबसे पूछा यार ये चीज कि कौन सा? आपका बेस्ट कमेंट्री मोमेंट कौन सा था यार? हाँ, सब लोग कमेंट भी करो यार। कमेंट्री। कमेंट योर फेवरेट आई थिंक कमेंटेटरी मूवमेंट। मुझे रिसेंट टाइम का अगर मैं बताऊं ना, मुझे यही लाइन अच्छा लगता है, मतलब टूटा है गावा का घमंड। जिस तरीके से वो विवेक राजदान बोलते हैं ना, मतलब गूजबम्प आ जाता है। और उस मैच का इसलिए ज्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि मैं उसको इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था, मेरे इंस्टाग्राम लाइव क्रिकेट क्रिक टीवी चैनल पे। और उस टाइम पे आई थिंक इतना ज्यादा कॉपीराइट नहीं आ रहा था, और बहुत लोगों के पास उस टाइम पे सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं था। तो मुझे याद है डे 5 का जब गेम स्टार्ट हुआ, हमने स्टार्ट किया था, 50 यूजर्स देख रहे थे लाइव मैच, ठीक है। और उस टाइम पे आई थिंक 99% लोग बोल रहे थे इंडिया जीत नहीं सकती, ड्रॉ के लिए जाना चाहिए या हार जाएगी। सिर्फ मैं और एक दो लोग बोल रहे थे कि हाँ, जीतेगी जीतेगी, पॉजिटिव हम लोग बना के रख के चल रहे थे। और मैच खत्म होने के टाइम गेस करो कितने लोग लाइव देख रहे थे? साढ़े स्टार्ट बारह हजार स्टार्ट किया था। नहीं नहीं भाई, इतना ज्यादा भी नहीं है। मे बी थोड़ा 1000। रियलिस्टिक रियलिस्टिक बोलो। हाँ, 1000। 1500 या 1600 के इतने आसपास लोग जुड़े थे जब इंडिया ने जीता। वो टूटा है गावा का घमंड वो चल रहा था, और उस दिन ओके। का मतलब अलग ही मजा आ गया, मतलब। और सब लोग फिर लाइव, मतलब एक होता है ना, आप अगर अकेले देख रहे हो, और क्योंकि मैं पीजी में रह रहा हूँ तो मेरे साथ में तो कोई दोस्त नहीं थे, बट लाइव में अगर 1500-1600 लोग देख रहे हैं साथ में, और इंडिया जीत रही है, चीयर कर रहे हैं, कमेंट में सब इंडियन फ्लैग कमेंट कर रहे हैं, और मतलब अलग ही लेवल था उस दिन। दैट इज तो मेरे लिए तो अनदर वही, लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। या जी, मेरा आप जो लोग बताओ। बेस्ट मोमेंट थे ना कमेंट्री के, वो हम्म, ना बड़े गजब के थे। मतलब एक तो मेरे को खुद याद आता है कि जब मैं कमेंट्री कर रहा था एंड आई वाज डूइंग द कमेंट्री ऑफ आईपीएल 2023 फाइनल। तो जब वो चौका लगा था तो मैंने बोला था, ये पैर पे लगी गेंद अब मिल गया है चौका, इट्स चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। पिछली बार 9 पे थी, इस बार 5वीं बार चेन्नई इस सुपर किंग्स में। इस टीम में कितने सारे किंग्स है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर लाइन बोला था। आई मीन आई वाज डूइंग द कमेंट्री 2 AM, और पड़ोसी तो 1:30 के आसपास, और वो पड़ोसी गेम जो तो है वो तीन जाग गए थे तीन देखो। दिन चला था ना। वो गेम तो 3 दिन चला था। और सी आई वाज लिटरली क्राइंग। मतलब जब चेन्नई जीता ना, मैं मतलब इमोशन मेरे को प्योर एक्सप्रेस कर दिया था। और जब वर्ल्ड कप अपन ने साथ में कमेंट्री किया था 2024 हाँ, का, वो भी है। वो बहुत, आई मीन आई वाज क्वाइट इमोशन एट दैट टाइम कि जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। आई मीन आई होप यू रिमेम्बर इट। आई या मीन भाई, याद है, हमने जिताया है। वो मैं तो आज तक बोलता हूँ ऑफिस में या जितने भी दोस्त रहते हैं कि भाई 2024 वर्ल्ड हमने कप वर्ल्ड हमने कप जीता जिताया है है। भाई। हमने जिताया है कमेंट्री करके। लाइव कमेंट्री पूरा मैच, वो अलग ही था। और बहुत अच्छी तरीके से कमेंट्री किया था वो अपन ने, मतलब मेरा जो इंडिया। मेरा जो बेस्ट कमेंट्री क्या है ना, मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, ये सुनील गावस्कर जी बोलते, when Virat Kohli and Rohit Sharma partnership building, you are looking at the future of Indian फ्यूचर cricket. ऑफ इंडियन This, क्रिकेट। this statement has given in 2013. हम्म, So I'm क्या है ना, I'm very much impressed with this statement. Like हम्म, future को कितने अच्छा प्रिडिक्ट किया है ये हाँ, इंसान। हाँ। करेक्ट। I So think that time, I feel that commentary has lost its charm. जो चार्म yeah, रहता है ना, वो चला गया yeah, है, yeah. क्योंकि बीसीसीआई उसको मतलब एक तरीके से रेगुलेट कर रही है। तो पहले के कमेंटेटर थे ना, ओपनली क्रिटिसाइज करते थे अगर कोई खराब खेल रहा है,
और ओपनली एनकरेज करते थे या प्रेज करते थे बहुत दिल से, कोई प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है, इरेस्पेक्टिव कि वो Do नया you प्लेयर है do या you एक्सपीरियंस remember प्लेयर। do you remember one thing, bhai? हम्म। Bangladesh versus Team India 2016 quarterfinal. हम्म। Do you remember that क्वार्टर match? जो हार्दिक पांड्या ने इट्स नॉट अ जिताया था क्वार्टर लास्ट में। फाइनल। Yeah, yeah. हाँ, बताओ बताओ। क्वार्टर फाइनल ही था ना वो? ना हाँ, क्वार्टर क्वार्टर फाइनल था, वो क्वार्टर फाइनल तो ग्रुप मैच सेमीफाइनल था था। शायद। No, no, नहीं भाई, semi-finals. हार्दिक Yeah, yeah. हार्दिक ने जो जिताया था लास्ट, वो लास्ट ओवर बॉलिंग कर रहा था ना, वो जिसमें मुश्फिकुर रहमान ने अर्ली सेलिब्रेशन कर दिया था। सेम मैच राइट? धोनी धोनी का स्टंपिंग चलेगा ना भाई? हाँ, धोनी का स्टंपिंग लास्ट याद आया। Yeah, yeah, yeah. तविश भाई, धोनी के फैन, इतने बड़े फैन हो के आप भूल गए यार, क्या कर रहे हो? या नींद नहीं, आ वो गई मेरे को क्या? वो याद है, पर मैच वो पे क्वार्टर फाइनल वो में था मैच वो। पे लिटरली लाइव कमेंटेटरी पे मुश्किल रहीम व्हेन ही हिट four for third ball, I think. हम्म। Harsha Brogly's statement has given like he just supported Bangladesh in commentary. ओके। So on that day, many social media users हम्म। literally uh, गाली दे दिया बैश किया। इसको. हाँ हाँ हाँ. हाँ, ये होता है होता है। आफ्टर दैट वन दिस ईयर इज इनको कमेंटेटरी में भी बंद किया गया. आई थिंक 1 year ये ऑफिशियली बांग्लादेश को सपोर्ट किया और इंडिया को नहीं किया बोल के. आई थिंक या ये रिलेटेड तो टू दिस मुझे मे बी लगता है क्रॉस बहुत बड़ी क्वेश्चन बेवकूफी होगा। थी यार। नहीं नहीं, बेवकूफी किसके पॉइंट से आप बोल रहे हो? मुश्फिकुर रहमान या हर्षा भोगले का? नहीं नहीं किसका? नहीं, मतलब या जो जो ट्रोल कर ट्विटर रहे हो, जो वगैरह पे जो पीपल लगते हैं ना, हाँ जो यार, ये इंस्टाग्राम इनका पे लोग, इनका हाँ, इनका मतलब सी, इनको तो कुछ सेंस नहीं है। हम कमेंटेटर्स का पता है क्या काम रहता है? जब जब हम्म। इंडियन टीम की बुराई करना, तब तब इंडियन टीम जीतती है। नहीं ये हम नहीं, सबको इसका पता है। नहीं नहीं, इस पॉइंट का ना मैं एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो हर्षा बोगले ने खुद कहा था। और उनको क्वेश्चन किया गया था कि आप जब हिंदी कमेंट्री में रहते हो तब आप, ऐसा लगता है कि इंडियन टीम को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और जब आप इंग्लिश कमेंट्री में रहते हो तो वो डिफरेंस कैसे रहता है, राइट? या आप न्यूट्रल कैसे रहते हो, या अलग सेंस में। तो उन्होंने इसका सिंपल जवाब दिया कि जो इंग्लिश कमेंट्री का फीड रहता है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए रहता है, राइट? तो वहां पे आप सिर्फ इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, और गेम जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। बट जब हम हिंदी कमेंट्री में आते हैं, क्योंकि हिंदी मोस्टली इंडिया और पाकिस्तान और इस सब रीजन में हो रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हिंदी में हम थोड़ा बहुत इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो उनको, और उनको जो डायरेक्टर रहते हैं या प्रोड्यूसर रहते हैं, उनको ईयरफोन में बोला जाता है कि ये बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। तो बहुत कुछ मॉनिटर्ड रहता है और रेगुलेटेड रहता है, तो इसमें कमेंटेटर का कुछ दोष नहीं है, उनके तरफ से तो वो But अरे अपना। but सिद्धू को नहीं बोला जाता? I feel commentatory, the one who is doing on live, they just have some kind of script also. I think like they just नो have to this kind of things नो only. नो नो ब्रो, आई डोंट थिंक। ना तविश ना भाई ना ज्यादा यार, बोल पाएंगे, हमने बट खुद आई ने डोंट थिंक कमेंट्री दे की। हैव। Okay. यू नहीं नहीं कांट नहीं, मैं रियली मैं रीड ऐसा द नहीं बोल रहा स्क्रिप्ट, हूँ. Like राइट? they will give some kind of proper hint like match should have to be like this only even though match was worst. No, no. The point which you are making, I'll clarify. So Yeah, sometimes you may have noticed, like if there is a new player, they yeah, give some stats related his domestic performance or some key stats, right? Or yeah, yeah. milestone alert. So those points given to them by hint on Yeah, earpiece. I at think. least there could be some script, right? That is what I'm telling you. Huh. I'm not saying that commentatory are by harding or else they are reading the script which they are giving. I'm Okay, not okay. saying that. But Yeah, I got your point. yeah, Let's take users best yeah, yeah, commentary yeah, yeah. moments. Okay, so Sadman is saying his favorite is Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground. ये Best पता है one. वो एपिसोड है जिसमें हमारे शो के 200 एपिसोड पूरे हुए थे। उज्जवल भाई बोल रहे हैं मेरा बेस्ट कमेंट्री है when रवि शास्त्री 6 sixes and 16 years later when Stuart Broad got his fairy tale ending in Test cricket by Nasir Hussain. Okay, सिक्स सिक्सेस तो नासिर यूवी का हुसैन का है। कमेंट्री क्या है ना? इट कुड बी लाइक पोएट्री. पोएट्री के जैसा रहता है, बहुत क्लीन और
धोनी फिनिशेस और धोनी finishes off in style. दीपक वर्मा जी का कमेंट आया कि धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, ए मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड, इंडिया लिफ्ट द ट्रॉफी आफ्टर 20। या ये तो सबको पसंद है ना भाई। Hmm. अच्छा, एक डैनी मॉरिसन इज अ फैंटास्टिक कमेंटेटर बिकॉज But ये he ग्रेट starts क्रिकेटिंग every नॉलेज। moment. It's an Indian captain who has been absolutely magnificent in the night of the final. भाई भाई रवि शास्त्री का आइकॉनिक रहा है मोस्टली, जब जब इंडिया जीती है या फिर अच्छा जी, रहा है ये हाउ तो लकी मोस्ट ही ऑफ द इज। टाइम। हाँ, हाँ हाँ। So one of my friend, we were discussing when India was reaching in WTC final, no, Ravi Shastri should be in the commentary box, and in the squad or playing 11 there should be one player from Kerala. Okay. केरला ओके। Yeah. These two Yeah, I can conditions. मल्लू सैमसन। understand. I can understand. So he's Yeah. just following the myths, everything which happened in previous ICC events. Yeah. 2007 में तो श्रीशांत स्क्वाड में था, रवि शास्त्री Right. कमेंट्री किया था एंड वी वोन दैट। 2011 में भी श्रीशांत, वो मल्लू था ना केरला वाला। 2011 के अंदर भी सुशांत था। या Sushant. ही इज इन द स्क्वाड 2024 के अंदर एंड ही हैव सैमसन था। प्लेड टू। 2024 में सैमसन था, राइट, Hmm. स्क्वाड के अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन है, ग्लेन मैक्सवेल 201 नॉट आउट, कैन मैक्सवेल डज इट, ही डज, दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल थिंग। ओके, ये कमेंट्री, बेस्ट कमेंट्री का सलमान भाई बोल रहे हैं। ओके, मुझे लगा क्वेश्चन है। भाई वो इनिंग्स लेकिन मानना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल, जिस तरीके से वो जिताया ना, वो ही जस्ट अनएक्सपेक्टेड था। यूटिलाइज्ड एवरी वीकनेस अफगानिस्तान हैज। भाई मैं सच कहूं ना, मुझे उस मैच में लग रहा था कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो गोल्फ खेल रहा है। एक या टांग में मतलब घुमा। और यू नो अफगानिस्तान लोग बॉलर्स मतलब क्लूलेस। Afghanistan is main culprit of, we are losing that कूली। World Cup. हाँ, एग्री एग्री। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आती तो भाई हाँ, ये अगर वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया तो देर इज लेस चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग इनटू द सेमीफाइनल्स। सैमसन इज फ्रॉम केरला। हाँ भाई वही तो बोला, एक मल्लू चाहिए केरला से हो या कहीं से, मतलब नो ऑफेंस, आई एम नॉट डायरेक्टिंग, बट वो पॉइंट है। ओके, लास्ट, आई थिंक दिस विल टेक एज लास्ट कमेंट। उज्जवल भाई सेइंग मार्क निकोलस, रवि, नासिर, टोनी ग्रेग, होल्डिंग, बिशप बेस्ट कमेंटेटर्स। हाँ भाई। यू फॉरगेट स्मिथ। मुझे, हाँ हाँ इमाम भाई बोले। यू आई थिंक उज्जवल फॉरगेट स्मिथ। इयान स्मिथ। या नहीं, वैसे तो बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, बट इफ यू हैव प्लेड EA स्पोर्ट्स क्रिकेट, नो, आई थिंक या EA स्पोर्ट्स क्रिकेट, Mark Nicholas has the commentary, and that like along with Tony like Greig. hmm? That is what I'm going to ask you. What? That Mark Nicholas and Tony Greig is with me. नहीं समझा भाई, क्या क्वेश्चन क्या है? मार्क निकोलस और मैं टोनी ये ग्रेग का क्या? बोल रहा था कि निकोलस और टोनी ग्रेग तो वो कमेंट्री में भी आते थे ना, वो ईए स्पोर्ट्स के। मार्क निकोलस तो मुझे पता है, टोनी ग्रेग का आई एम नॉट दैट श्योर। इमाम भाई आपको पता है थे क्या? थे थे सेकंड, नो नो आई डोंट नो, आई थिंक मार्क निकोलस का ही था। क्योंकि मार्क निकोलस का वो पता चल हाँ जाता है, क्योंकि मैंने बिग बैश में देखा है, ऑस्ट्रेलियन टीम का जब भी रहता है ना, तो वो मुझे पता है कि मार्क निकोलस का है। और एक जगह पे वो तो बोलता है, हाय वेलकम, दिस इज मार्क निकोलस ऑन दिस या मैच, ब्ला ब्ला आगे। नाम भी बता देता वो एक हाँ जगह। नाम भी बताया था एक जगह पे, तो इसलिए वो मार्क निकोलस मुझे याद है, और बहुत आइकॉनिक है वो, मजा आ बट जाता है। क्या आइकॉनिक गेम था यार वो ईए स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007। भाई मैंने प्लान रखा बड़ा है कि मजा गेम खेलते हुए एक Q&A करना है, बट वो सेट कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा हूँ। आपको भाई, आपके पास स्पोर्ट्स गेम है क्या, ये स्पोर्ट्स? हाँ भाई, मेरे पास है। मेरे पास तो नहीं है भाई, वो क्यों इंस्टॉल करना है मुझे पता नहीं है। मैं अगर वो चाहिए तो ना मैं आप इस पे, उससे कर सकते हो, टॉरेंट से आप कर टोरेंट सकते हो चाहो तो। टोरेंट की जरूरत नहीं है, मेरे पास सेटअप फाइल है, मैं तुमको गूगल ड्राइव में दे दूंगा। अगर या चाहिए तो इंस्टॉल भी कर दूंगा, गूगल मीट में अगर स्क्रीन शेयर करोगे तो कर दूंगा, बहुत इजी है, खेल सकते हो। जी करेंगे, मुझे तो बहुत तो और पसंद है वो कौन कौन गेम सा गेम है लेकिन आपके पास?
भाई बाकी और कोई? मेरे पास बहुत सारे गेम थे, बट मेरा लैपटॉप रिसेंटली खराब हो गया था, हार्ड डिस्क तो फॉर्मेट हो गया, तो अभी सिर्फ क्रिकेट ही है, बाकी कुछ नहीं है। बट तो जीटी वाई वेबसाइट सिटी है, वगैरह अगर नहीं है? आपको वेबसाइट्स वाई हैं सिटी जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। भाई सिटी का नहीं यार, इतना मुझे भाई सिटी खेलने का, मतलब खेला है बट नहीं, अभी मन नहीं करता है भाई सिटी जैसा खेलना। बट मेरा दूसरा फेवरेट गेम था ये नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, वो ओहो, एक वो तो लव था यार। उसमें क्या गाड़ियां पीछे भागती थी पुलिस की साथ में, और पुलिस। उससे बढ़िया मैं बताता हूँ, एक काउंटर स्ट्राइक शायद आपने खेला होगा, 1.6। हाँ, काउंटर स्ट्राइक का तो बहुत सारे सीरीज हैं, अभी तो मोबाइल भी आ गया है काउंटर स्ट्राइक का। तो पता है अच्छा। मतलब काउंटर स्ट्राइक में जब मैं खेलता था ना, मेरा इसमें कोशिश यही रहता था कि यार क्यों जबरदस्ती एक ही आदमी को मारने के चक्कर में अपनी 10-12 गोलियां खत्म करो। तो इससे बढ़िया बेस्ट है कि सिर्फ यार एक हेडशॉट, हेडशॉट मारो, खत्म करो। स्नाइपर लेके हेडशॉट, समझ गया मैं आपकी बात। नहीं, मैं कभी वन स्नाइपर वन यूज सेकेंड, करता वन नहीं था। सेकेंड भाई, वी हैव अ कमेंट, 1 सेकेंड। हम्म। भाई मुझे भी चाहिए क्रिकेट वाला गेम। हाँ, वो या वो ये स्पोर्ट्स क्रिकेट का बोल रहे हैं, दे दूंगा भाई ओके दीपक ओके। भाई, टेंशन मत लो। भाई आप लोग कब सोते हो? सोते हैं भाई भाई? अभी अभी सो जाएंगे। ये लाइव एंड करके, लाइव हाँ। एंड करके सो ये जाएंगे। लाइव एंड करके। या तो पता है उसमें ना मैं कभी स्नाइपर लेता ही नहीं था। मैं क्यों आपको मशीन गन से एंटरटेनमेंट ठोकता नहीं था। लग रहा है क्या भाई दीपक भाई? हम लोग सोने के लिए इतना वेट कर रहे हो आप लोग, हाँ? नहीं दीपक भाई, यार हमारा एक ऑफिस के बारे काम में सोच करते हैं, रहे हैं कि ऑफिस का भी ओके। जायजा दिवाली लेना। के टाइम पे ना, दिवाली के टाइम पे अपन वो करते हैं, क्या लाइव में दैट पटाखे फोड़ने वो, हैं क्या? नहीं अरे नहीं नहीं, पटाखे तो नहीं आजकल तो कोई पीजी पे फोड़ता ही जला नहीं है। दो। वो होता है ना, क्या वो एक होता है? कौन सा गेम होता है जिससे अपन वो ड्राइंग बना के गेस करते हैं। रोहित शर्मा मत बनो भाई, हम लोग कोई गेस नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, वो स्क्रिबल वाला, आई थिंक स्क्रिबल बोलते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं भाई, हमारा जो स्क्रिबल में कंटेंट तो स्पोर्ट का ही है ना, स्पोर्ट्स भी वर्ड बेटर है। वर्ड बनाते हैं नहीं अरे, स्क्रिबल ये में। तो लाइव खत्म होने के बाद, जैसे अपन कभी जल्दी लाइव चालू कर ले कभी, तो हम्म। उसमें फिर अपन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग ऐसे ही गेम खेलने वाले, तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड हो, वैसे हम्म। बोल रहे। वो उसके लिए अलग चैनल लगेगा। प्राइ चैनल मतलब बनाने की जरूरत अपना नहीं ना अलग। ये कंटेंट पर्सनल। तो मिक्स हो जाएगा ना, इसलिए। हाँ, ये बात आपको भी क्या सही चाहिए, है। सिर्फ अपने अपने अंदर ही खेलना है, लाइव नहीं करना है, दूसरों को ऐड नहीं करना है ऐसे। वही तो मैं कह रहा था। हाँ, तो वैसा वो कर सकते हैं कि, बट वो यूट्यूब पे लाइव नहीं जाएगा, इधर ही सब स्ट्रीम यार्ड ना में ना अभी ना, जैसे। अरे बाबा, वो यूट्यूब पे बट लाइव ना भी जाए तो जयंत कोई भाई, फर्क हैव नहीं अ पड़ता। सजेशन फॉर यू। हम्म। बोलिए। It is better to stream in short form. I mean, shorts form, you know, right? शॉर्ट्स फ्रॉम फॉर्म में प्रॉब्लम ये दीपक भाई करते हैं, दीपक भाई अगर अच्छे से बता पाए, अगर मैं पॉइंट मिस कर जाऊं। शॉर्ट्स फॉर्म का अभी यूट्यूब रिसेंटली भी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अगर Yeah. करना है तो कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये है ना, गेस्ट सिर्फ शायद एक ही जन ऐड हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में, और वो Okay, okay, उसमें हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, और कमेंट जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो नहीं कर पाएंगे, okay, वो उसके लिए ये वाइड स्क्रीन वाला लाइव करना पड़ेगा, ठीक है। okay, okay. वो एक चैलेंज है। स्पेक्ट्रम दीपक भाई बोल रहे हैं, ठीक है भाई, गुड नाइट। ठीक है उसके भाई, बाद गुड नाइट। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि अभी की ऑफिस कब रहता है, बट अभी याद आया कि अभी तो दिवाली चल रही है ना। मैं वाह, कल ऑफिस है। अरे ओके, दादा, गुड नाइट। गलत फहमी है, कल ऑफिस है यार। चलिए, आई कल थिंक ऑफिस है, कल ऑफिस जाना है। इसी नोट पे लाइव एंड करते हैं। या अरे थैंक्स वैसे, फॉर हैप्पी छोटी दिवाली यार। या आपको हैप्पी भी। छोटी हैप्पी छोटी दिवाली। दिवाली। एंड एडवांस दिवाली टू। और थोड़ा सेफ से रहना और सब कुछ अच्छा जलाना। ओके, विश यू थैंक्स Okay, गाइस okay, थैंक्स। हैप्पी Jain दिवाली। bhai, we'll talk हैप्पी you. दिवाली Yeah, एंड happy बाय, टेक Diwali, केयर। and viewers also happy Diwali. चलिए, अब सोएंगे, बाय ब्रो। नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। बहुत मजा आया। या थैंक्स। ठीक है जयंत।